کی اطاعت کرو تو اسی دنیا میں آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، پھر اس طرح سے عمل کرو گے تو آپ بھی نبی بنو گے، رسول بنو گے، شہید صدیق بنو گے۔ یہ انعام ہیں جو اس دنیا میں ملتے ہیں۔ ورسولہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا رسول زندہ ہوتا ہے، مردہ کو رسول نہیں کہتے۔ آج کے دور کا رسول کون ہے؟ اور یہ آج کے دور کا، چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو لوگ رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، وہ وفات پا چکے ہیں۔ آج کے دور کا رسول جو زندہ ہوگا، زندہ انسان زندہ کو پیغام دیتا ہے، وہی من یطع اللہ و رسولہ، اللہ کا رسول بھی زندہ ہوگا، کیونکہ نبی اور رسول ایک ہی انسان ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ کو بتائے گا کہ یہ میرا رسول ہے، یہ میرا نبی ہے، آپ اس کی اطاعت کرو، پھر اس طرح سے جس طرح سے وہ نبی عمل کر رہا ہوتا ہے، اصل اللہ کی منشا ہوتی ہے کہ لوگ اس طرح سے عمل کریں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے۔ صراط اللہ زینہ انعمت علیہم کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا انسان کو راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ آپ تو انعام پوچھتے نہیں ہو، اپنے بڑوں سے بھی نہیں پوچھتے، اپنے علماء سے بھی نہیں پوچھتے، اپنے خلیفہ سے بھی نہیں پوچھتے، ڈرتے ہو سارے۔ ہم نے کہا تو ہمیں آگے سے جو ہے نا منہ بند کر دیا جائے گا، جماعت سے اخراج ہو جائے گا۔ بھئی اللہ کا حکم ہے، پوچھو۔ میں نے بھی سوال اٹھایا ہے ساری جماعت میں، میں نے کہا ہے جو انعام یافتہ ہے میں اس کی اطاعت کرنے کو تیار ہوں، میرے اللہ کا حکم ہے۔ آپ بھی پوچھو، میں بھی پوچھتا ہوں، مجھے کوئی بھی بندہ آ کے ثابت کر دے وہ انعام یافتہ ہے، میں اس کی اطاعت کر لوں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جھنجھٹ میں پڑنے کی۔ مجھے پتہ ہے بڑی مخالفت ہے، بڑی دکھ ہے، بڑی مصیبتیں ہیں، میں سہ رہا ہوں، بھگت رہا ہوں، بڑی زندگی مشکل گزر رہی ہے میری، ٹھیک ہے۔ جو ایک دنیا میں خوشی ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے میں کس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں۔ مثلا مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا میں پھر امتحانوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے مجھے بتایا ہے اس راہ میں بڑی ماریں بھی پڑتی ہیں، تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ کیوں کہ مجھے اللہ کی محبت مل چکی ہے اور یقین کامل ہے کہ واقعی اللہ ہے، وہ بولتا ہے، ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے، ایسی ایسی دعائیں سنتا ہے کہ منہ سے آپ نے بات نکالی تو پوری ہو گئی۔ تو آپ سوچتے ہو یار یہ تو میں نے ایسی بات کی تھی، تو پھر آپ کا یقین میں انسان کا ایمان یقین میں بدلتا ہے، یقین کامل حاصل ہوتا ہے کہ واقعی اللہ ہے۔ اس سے پہلے ایمان ہی نہیں ہے انسانوں کے پاس۔ جب تک اللہ نے اب بتایا ہے، جب تک انسان کو سچی خواب نہیں آتی، دعا نہیں قبول ہوتی، تو وہ صالح اور شہید کا عمل کر رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا تو اس کو جزا دے گا مالک یوم دین کے تحت، تو پھر کو سچی خواب دکھائے گا، دعا قبول کرے گا، اس سے پھر اس کے اندر ایمان پیدا ہوگا کہ واقعی اللہ ہے۔ ہو اس سے گئی ہیں پہلے یہ ایمان نہیں چیمہ ہے۔ صاحب، ایک ہر منٹ ایک منٹ ایک انسان منٹ، جس السلام کو بھی علیکم۔ ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، چیمہ اب صاحب ٹیپ اپنے بند کرو گریبان اپنی، میں بہت سن جھانکے، لیجیے۔ کیا اس کو سچی خواب آتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے چیمہ نہیں صاحب مجھے ہوتی؟ آتی ہے سچی خواب، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ تو پھر چیمہ صاحب مجھے سچی ورسولہ کے خواب اندر آئی سے ہے۔ یہ بھی اللہ، یار ان کو بتا رہا ہوں، آپ خاموش ہیں پلیز۔ ورسولہ کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا رسول جو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ رسول بنتے ہیں، چونکہ والدین سے انسان تعلیم لیتا ہے۔ آپ کے والدین اگر سیدھے راستے پر تھے، وہ آپ کے لیے رسول بنے، انہوں نے آپ کو پیغام دیا، انہوں نے آپ کو نماز سکھائی، سب کچھ کیا، یا پھر جو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو وہ رسول بنتا ہے۔ خلیفہ وقت بھی رسول بنتے ہیں، مگر ان کا یہ جو مقام ہے نا خلیفہ وقت کا، یہ خلافت منہاج نبوہ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ نبوت جو وہ مقام پہ جب ہوگا خلیفہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے باتیں بتائے گا، وہ نبی بھی ہوگا، وہ رسول بھی ہوگا، وہ خلیفہ بھی ہوگا۔ اب اللہ نے بتایا ہے نبی ہی خلیفہ ہوتا ہے، تو آپ لوگ اگر اللہ کو مانتے ہو تو پھر آج کے دور میں ہمارے پاس کلیہ آ گیا کہ جو نبی ہوگا وہ خلیفہ ہوگا، وہی رسول ہوگا۔ اطیع اللہ اطیع رسول، ہم اس رسول کی اطاعت کریں گے جو اللہ تعالیٰ سے کلام کرے گا، وہ نبی ہوگا، جو کہ نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب سے چیمہ خبر صاحب دینے میں والا۔ اندر پیپر ورک لائن تو جانا، میرا سوال نہ لیو۔ بات اگر لینا، مجھے سچی خواب آئی ہو، مجھے سچی خواب آئی ہو کہ یہ خلیفہ سچا ہے، تو پھر آپ کو میں کیوں مانوں؟ اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ خلیفہ سچا ہے جو اس وقت ہے، تو میں آپ کو کیوں مانوں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو بتایا ہے تو آپ اپنی اسی بات پہ رہیں، پھر آپ کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے۔ بالکل۔ خواباں تے سچیاں نہیں ہوندیاں نا، راجی خواباں کو ایک کوشچن تھا، یہ کوشچن میرا یہ ہے کہ چیمہ صاحب گزشتہ 4 چیمہ گھنٹے سے صاحب سے یہاں اللہ پہ تعالیٰ بات ڈائریکٹ پر بات بیٹھے کرتا ہوئے ہے، ہیں۔ آپ سے کی ہے ڈائریکٹ اللہ ایک نے منٹ، بات۔ اگر بھی واقعہ میں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے سارے حکموں کو مانتے ہیں، انعام ہوتا ہے، انعام کیسے ایسے بندے بھی ہو سکتا ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا؟ چیمہ صاحب نے ذرا بریک نہیں لی، نماز کے لیے بھی نہیں گئے۔ اللہ کے نبی تو اس طرح نہیں کرتے کہ وہ ٹک ٹاک پہ بیٹھے رہے اور نماز کا ٹائم چلا جائے۔ میں نبیوں ابھی پہ اعتراض جو ہوتے ہیں وہ نماز اسی طرح ہی پڑھنے کے ہوتے رہتے لیے ہیں۔ تھوڑی دیر میں جانے لگ والا ہوں، نماز کا بھی ٹائم ہے۔ اللہ نے اب کہا، مجھے خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے چھوڑو مت، ابھی یہاں پہ ٹائم ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، جمع کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ پیغام دے رہا ہوں، اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، یہ عبادت میں شامل ہے کہ میں اپنی کوئی میوزک نہیں سن رہا، کوئی اپنی پارٹی انجوائے نہیں کر رہا، اللہ کا پیغام دینے کے لیے میں نے سونا تھا، اس وقت میں سویا ہوتا ہوں، اپنی نیند خراب کر کے لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کا پیغام چیمہ دے رہا صاحب، ہوں۔ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے نا، وہ زیادہ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ کی طرف ہی جھکوں، اللہ کے ساتھ ہی وقت گزاروں، لوگوں سے اس کو غرض نہیں ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود میرے کے بارے میں بھائی، کیا فرماتے ہیں کہ جب ان کے گھر میں پوچھتے تو کہتے ہیں کسی مسجد کے کونے میں پڑے ہوں گے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے نا، میں پوری کر رہا ہوں، مجھے اس کی جزا مل رہی ہے، آپ اپنی فکر کرو، مجھ پہ اعتراض مت کرو، مجھے جزا مل رہی ہے۔ نبیوں پر سچوں پہ اعتراض ہوتے ہیں، سچوں پہ چیمہ صاحب، سچوں پہ اس طرح کے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں۔ آپ مرزا صاحب کی ہسٹری یہ جو بتا رہے ہیں ان کا بھی نکال لیں، ان پہ بھی اعتراضات۔ اچھا علی بھائی، اگر کوئی اور جو بات کر رہا ہو تو اس کو بھی نہیں ٹوکتے نا؟ رضوان بھائی، آپ بات کریں گے کوئی ٹوکے گا؟ انہیں کریں بات۔ کونی کونی چھری کے ساتھ مل کے تیز ہوتی رہتی ہے۔ ہاں جی، میں ابھی بھی احمدی ہوں، پہلے بھی پیدائشی احمدی تھا میں۔ میرے خلاف جھوٹی درخواستیں دی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مجھے بتایا تھا واللہ خیر حافظ، یہ 3 بار مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے واللہ خیر حافظ۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ سارے معاملے سیدھے کر دیے۔ پھر اب جہاں علی پہ میں بھائی رہتا بات ہوں کرنے اب دیں، بندہ میرے نبی گلے بھی بات پڑا کر رہا ہے، ہے اور آپ ہنس رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہیں، ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ हंसी ਕਰਤੇ ਨੇ, अहमद ਤੇ भाई, ਹਾਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ माइक ਗੱਲ नहीं। म्यूट नहीं था, हंसी आ गई। हाँ, हमें भी आ अच्छा अच्छा, सकती है पर आपको हम पता म्यूट चल थे। गया है कि उनका माइक अली म्यूट नहीं अहमद था। भाई, आप वो सवालों ने जवाब सुन लेने दे, इतनी देर से रिजवान भाई नहीं, चुप वो जो बैठे बीच में हैं। कह के लगा रहे हैं उनको ना रोकना है, उनको आपने नहीं रोकना। वो आप नहीं नहीं, आपने जी नहीं जी हाँ बताना, साहब। आपकी सारी बातें ये बताएंगे अली साहब। आपका माइक उनको पता है, वो आपके करीब बैठे हुए हैं, उन्हें पता है। आपको अली अकबर बताने की जरूरत नहीं। हम्म, हम्म, हम्म। ہاں جی، واہ بھائی، علی اکبر صاحب وہ امیر جماعت عہدے دار نہیں تھا، وہ صدر جماعت عہدے دار نہیں تھا، سیکٹری مال عہدے دار نہیں تھا، وہ چوٹ چماڑ تھے، کسی اس میں مطلب ہنسے تو کوئی بھی کھچڑیاں نہیں تھے، ہنسا چھوڑیاں سوائے ٹوٹ آپ کے کے، آ گئے تھے ہیں۔ یار کوئی شرم بھی نہیں نہیں آئی ہنسا، اس جنہوں نے بات سوال کرتے کیا ہوئے، وہ بھی وہ نہیں عہدے ہنسے، دار تھے جنہوں نے درخواستیں دی انہوں تھی، نے بھی پتہ نہیں کہکا نہیں کہاں سے آ لگایا۔ کے اٹھ کے۔ اور یہ چیمہ آپ صاحب کا جو جو کہہ وہ اچھا بول ایک رہے ہیں سیکنڈ ایک بات سیکنڈ سمجھ میں ہی نا نہیں آ رہی، میں نا دونوں سوال بول رہے ہیں۔ ریپیٹ کر نہیں، دیتا ہوں، انہوں نے تو ایک بڑا سیکنڈ ٹھہرے، معقول جواب دیا ہے اور آپ نے کہہ کے لگانے شروع کر دیے۔ نہیں ایک سیکنڈ ٹھہرے، میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایز اے احمدی ہونے کے آپ کو کبھی کسی عہدے دار نے، صدر نے یا امیر جماعت نے کسی نے آپ کو یہ انسٹرکشن دی ہے کہ آپ جا کے کسی کا گردن کاٹیں یا کسی کا جان لیں یا اس کو ماریں؟ یہ سوال ہے کیونکہ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ مجھے احمدیوں سے خطرہ ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی ان کو کسی عہدے دار نے حکم دیا ہے کہ جا کے کسی کو مارو یا کسی کی گردن کاٹو جو ان کو خطرہ ہے؟ صرف میرا یہ سوال ہے۔ ہاں جی، ایسے آپ بہت ہی سمجھدار ہیں نا، واقعی کہاں پہ رہتے ہو، کون سی دنیا میں ایسی باتیں کندھا ساری کہہ کے منہ پہ کہی جاتی ہیں؟ جو جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا میرا بھائی، وہ باتیں منہ پہ نہیں کہ اس طرح سے کہتے اور کروا دیتے ہیں، اور میرے ساتھ ہوا ہے۔ ایک احمدی میرے گلے پڑا ہے، مجھے باقاعدہ خواب میں دکھایا گیا تھا، ایک عہدے دار دکھایا تھا، سفید کپڑے پہنے بیڈ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، تو جو وہ کہہ رہا تھا خواب میں، اس وجہ سے مجھے خطرہ پیدا ہو گیا، یہ میرے ساتھ کوئی پنگا ہوگا۔ اس کے بعد ایک احمدی میرے گلے پڑا ہے۔ تو پھر یہ اندر کھاتے کی باتیں ہیں، آپ کندھا ابھی آپ بہت پیچھے ہو، ابھی جا کے ربا میں دیکھو کیا کیا ہوتا ہے۔
अभी रब्बा में बहुत कुछ जुल्म ज्यादतियाँ हैं, अमूमी बदमाशी करता है, सीधी सीधी वहाँ पे लड़कों की तरबियत होने वाली होती है, उनको उठा लेते हैं, उनको ले आकर मारते हैं। ओ भाई इस इन्हीं 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 ग्रुपों में आज ही एक बंदे ने मुझे ना कत्ल की धमकी दे दी है, वो अहमदी है। तो आप क्या समझते हो ना, वो ये पाकिस्तानी सोच जो है ना, ये बड़ी तेज़ है, ये मुंह पे नहीं कहती, बड़े तरीके से काम करती है। मैं आप पहले बता दूं, मुझे अल्लाह ने बताया है, एक नूरा बदमाश टाइप लड़का था, उसके मतलब वो भी कहना पाकिस्तान में वो बदमाशी करता था उस। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੂਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ। ਯਾਰ ਫਾਰਾ ਕਰਾਓ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਸਰ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਜਾਹਿਲਾਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਹਿਲ ਨਬੀ ਹੈਗਾ ਅਲਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ। ਸਵਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 50 ਦਫਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੂਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਬੰਦਾ। आपका कोई नुकसान नहीं है। अपने आप कोई शौक है। हाँ, और रियाज भाई पता क्या, बात थोड़ी मुख्तसर कर लो ना, तो मेरा ख्याल है कि सब सुन पाए। आप बहुत ज़्यादा तवील कर देते हो, तो अभी किसी के पास इतना नहीं है कि बहुत लंबा। मान भाई इतना बड़ा स्पेसिफिक सवाल है कि जमात ने अगर इंफरादी तौर पे किसी ने भी किया है, उसका जमात एज अ जमात तो नहीं ना लेना देना। रिजवान भाई इतना सवाल है एज अ जमात, इनके बारे में तो भी कुछ ऐसे हुई वो चीज़ वो बताएं। या जैसे ये बोल रही हैं कि अमीर जमात और सदर जमात, और ये क्या अमीर जमात बोले इन्हें तो ये किसी को जाके थप्पड़ भी मारेंगे? नहीं मारेंगे। ये सवाल पूछा जा रहा है, वो सवाल समझ ही नहीं पा मुझे रहे। सारे मुझे मैंने सालों से जवाब सुने हैं, आप लोगों को टाइम लगना है। रियाज भाई आप सिर्फ मुख्तसर कर लेना प्लीज, प्लीज मुख्तसर कर लेना बात वाले को। बदमाशी करते हैं, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਵੇਦਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ? उन्होंने अमीर का बच्चा ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰਵੇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ? ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗਰੋਬਾਨ ਤੋਂ ਪੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨੇ? ਜਰਮਨੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨੇ ਉਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ। ਜਾਣਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਕਿਆ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੁਸਰਤਾਬਾਦ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਫੈਮਿਲੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਫੰਡ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਆਹ ਚੀਮਾ ਨੁਸਰਤਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹੀ ਨੇ। अली अकबर सियालकोट दुख वाली बात यह है कि सदर और सेक्रेटरी तरबियत कहते हैं कि हमें पता नहीं है, जबकि वो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे। वो सारे एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, वरना उस बंदे को जमात से खराज की सलाह होनी चाहिए थी, जो कि उसकी वजह से जमात बदनाम हुई है। तो पुलिस को मैंने फ़ोन किया, पुलिस आई, फिर तो ये कहना सारे उसको गलत का साथ देने वाले। इसको लिए लोग कहते हैं जी आप गलत के जाकर साथ नमाज पढ़ो, तो भाई वो गलत है, मैं गलत के साथ कैसे बैठ जाऊँ? बात दरअसल ये है, आपका जो दावा है वो ये है कि खुदा ताला आपसे बातें करता है, और जितनी भी बातें आप बता रहे हैं वो सब अल्लाह ताला ने आपको बताई हैं, ठीक है। अब जब आप सारी बातें अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर रहे हैं और उसके बावजूद लोग आपको जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनका तो ये बात बनता ही नहीं है। वो अपने पास से तो चीमा साहब कोई बात कर ही नहीं रहे, वो तो हर बात को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर रहे हैं। ਹੈ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇ ਡਰਨ ਇਸ ਦਾ ਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਬੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। कौन क्या शिकायत लैके हजूर को? ਆਪਣੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਹੈ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇ ਡਰਨ ਖਲੀਫਾ ਕੋਲੋਂ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਹੀ ਆਖਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਦਾ ਨਾਸਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਛੜਿਆ ਜਮਾਤ ਉੱਪਰ। ਅਹਿਮਦੀ ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ? ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਠੀਕ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਆਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਨਤੁल्लाह ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ। ਮੈਂ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੀ ਹਰ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ।
ਲਾਨਤੁल्लाह ਅਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ ਉਹ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਮੂਰ ਆਖੀ ਹੈ ਬਣਾ ਨਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਚੀਮਾ ਕੁਛ ਸਾਹਿਬ ਮਸਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮਮੂਰ ਬਣਾ ਲਓ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਭਾਈ ਦੀ ਹੋ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਡਏ ਹੋ ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਹਿਣ ਡਏ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਉੱਥੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕੁਛ ਦਿਖਾਓ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਜੋ ਕੁਛ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ खलीफा वक्त ਜਾਓ ने ਜਾ कहा ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ बच्ची दे मतलब ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ उस बच्ची दे ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਕੰਮ खलीफा ਦੇਣਾ वक्त ਆਇਆ ने ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਬੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜੇ ਨਬੀ ਟੋਟਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਗੇਮ ਨਾ ਗੇਮ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿਆ ਜਾਓ ਜਾ ਉਹ ਭਾਈ video ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਬੋਬੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬੋਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੋਬੀ ਮਮੂਰ ਬਣਾ ਲਾ ਉਹ ਮਨੂਬ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕੰਨ ਕਿ ਚ ਮਾਮੂਲ ਗੁਰਕੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋ ਅਖੀਰ ਹੈ ਯਾਰ ਅਖੀਰ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਹੈ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀ ਅ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਠੀਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਸੀ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ याफ्ता ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤਾਤ ਕਰਾਂਗਾ जाके वहां से उनको दिखाना लेटर वो दे देंगे दोनों मैं नाम याफ्ता मैं तो मौके से मेरे सच्ची ख्वाब आई है साहब के बारे में और मैं मेरी मनो मेरी तो खत्म हो गई अली अमन म्यूट करो मैं नाम याफ्ता चीमा साहब ये ताहिर अमजद साहब अपने इनाम बताओ आपसे पहले प्राइवेट में मैंने नीचे लिखने से कुछ नहीं होता अपने इनाम बताओ ऊपर आओ नहीं तो आप इनाम अल्लाह ने देने किसी मरब्बी का भाइयों देते हैं मरब्बी बन जाने से कोई नहीं बख्शा जाना अपने अमलों से बख्शा जाना अमल इसी दुनिया में है जजा इसी दुनिया में है ताहिर अमजद साहब ने अगर कोई अपना भी सीट नाम ना लगाओ आई तो ना मेरी सीट आ जाए ये नीचे उन्होंने कमेंट लिखा हुआ है उनका जवाब दे रहा हूँ उनको इधर यार वो तो मैसेज भी नहीं किया उन्होंने यार क्या है ओ यार पढ़ लो यार मुझे कम है की बोलो यार तो ताहिर अमजद साहब तो है ही नहीं नीचे ओ यार नहीं, ਆਪਣੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵਰਸੂਲਨ ਅਲਾ ਅਹਮਦੀਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਰਫੀਕ ਬਣਨਾ ਜੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾ ਜੋ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਸਭ ਤਮਸੀਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੇ ਐਵੇਂ ਕਦਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾ ਜੋ ਮੌਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸਲ ਕੀ ਅਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਚੜਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਚੜਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਵਾਂਗਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਲੈ अस्सलाम वालेकुम ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਸਦੀਕ ਨੇ ਸ਼ੁਹਦਾ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਇਨਾਮ ਨੇ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ नहीं फिक्र जी जी वो बड़ी देर से उन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी उनका सवाल सुन ले जी इफ्तार भाई उनके सिग्नल भी नहीं ठीक है सवाल में वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ये इफ्तिखार भाई चीमा साहब ना मेरे हमसाए रहे ने मैं क्या चीमा साहब मेरे हमसाए रहे ने मैं इन्हें बड़ी अच्छी तरह जानना हाँ जी
ਤੇ अच्छा ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੇ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਾਬਾਂ ਸ਼ਾਬਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਜਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਧਮਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰ ਹਸਾਇਆ ਸਾਜੇ ਮੇਰੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਧਮਕੀ ਲਾਣ ਆਇਆ ਸਾਜੇ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਜੇ अच्छा ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਦਜਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ੁਬਿਲ੍ਲਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਪੀਕਰ ਖੋਲ ਛੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵੇ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਝਿੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲਤ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਲੇ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁਛ ਜਾ ਕੇ ਹਿਆ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਜ਼ੇਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸਾ ਖਾਬਾ ਅੱਲਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਸਨ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਉਹ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਲੋਗ दजाल अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਉਹ या ਤੁਸੀਂ साहब ਪਾਗਲ आप ਆਖੋਗੇ आपने ਗਵਾਹ इतने ਹੋਗਾ सवाल उनसे पूछे हैं, इतने सवाल उनसे पूछे हैं, उन्हें जवाब देने दें। जी इफ्तार भाई, और भाई आपकी वैसे आवाज सही नहीं आ रही कि ठीक करें ना थोड़ा से सिग्नल को। इसके मुतल्लिक लाइन निशान है, भी लाइन दजाल है ये लड़ाई करने के लिए मेरे गले पड़ने के लिए खुला मेरे मकान सामने खड़ा था मैंने सब्र से काम लिया था मैं ये तो पागल है मैं पागल नहीं हूँ कि इससे लड़ूं पूत है कि चीमा साहब ज़हनी मरीज नहीं है। पूछ लें इसने मुझे खुली धमकी दी थी कहता जब जो करना जाओ कर लो ये और मालिक मकान जो थी ना मेरे कज़न की बीवी थी उसने धोखा दिया उसको सारे कह के अच्छा मैं सुलह करती हूँ मेरे नाम मकान लगवाओ मैं अपने कज़न के मकान में आया हुआ था उसने अपने नाम मकान लगवा लिए फिर मैं उसके मकान में बैठा हुआ था अपने कज़न के आधी यहाँ पे उन्होंने आधी बीवी की जायदाद आधी कज़न की जायदाद होती है तो उसने केस कर दिया ये सारे उसके नबी साथ मिलके पर्सनल नबी सारे मिलके पब्लिक उसके साथ मेरे प्रॉपर्टी खिलाफ होता है। हो गए थे मैं इनके साथ सिर्फ क्या है कि झूठ में गलत में साथ नहीं देता था सीमा ये शादी फ्री करो, बच्चे नहीं है, जन्म को ठीक हो जाएंगे। बच्चे नहीं है, बिल्कुल बच्चे नहीं है मोहम्मद अहमद भाई। नबी पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, उसकी कोई चीज पर्सनल नहीं होती। मोहम्मद अहमद भाई आज ये नबी की तो इफ्तार बीवियां भाई भी आई हैं। नबी की तो बीवियों पे भी इतराज होता है। यार मैं इसलिए आप लोगों को ना बार आजाद बार कह रहा भाई हूं, उनकी मुखालफत करने के बजाय ना सिंपल उनसे पूछो अल्लाह ने क्या बताया वो सुन लीजिए। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? मोहम्मद अहमद भाई आज इफ्तार भाई आई हैं और ये चीज़ देखिए, इफ्तार भाई आपके सिग्नल नहीं पूरे आ रहे। जो इफ्तार भाई आपके सिग्नल नहीं है, थोड़े से ठीक करें पहले ना। मैं मोहम्मद युद्ध अहमद भाई रसूला राय तो आगे तो राय तो भाई पीछे। यार आपको समझ नहीं आ रही है, सोशल मीडिया रिकॉर्डिंग करेंगे, इफ्तिखार भाई कहीं और जाएंगे, गैर अहमदीन को सीधा कह लेंगे तुम तो बुढ़ी को मार खाना कोट खाना रहा तो आपको समझ नहीं आ रही बात की है। नहीं मोहम्मद अहमद भाई नहीं, कि उन्होंने हमें तो की अरशद भाई आप तो जो जल्दी आई है ना बात वो जल्दी नहीं से यार मुझे जल्दी नहीं आई, मैं हमें तो समझ आई। हमने तो घंटा पहले कह दिया था कि आज काफी लंबा हो गया सेशन, उसके असरात जो हम पढ़ रहे हैं। हमने तो पहले ही मैंने तो कह दिया था और तंजीला बाजी ने जी ठीक कोई मोहम्मद अहमद भाई कि देखें कि उन्होंने बात मंसूख की है कि उन्होंने बहुत सी बातें इफ्तिखार भाई को पहले बताई हुई हैं। तो आज वो बंदा आपके सामने आया है कि जिनके बारे में चीमा साहब ने अभी बोला है, तो अभी पूछ लेते हैं उनसे कि ये जितनी बातें वो बोल रही हैं। आप मजहबी लैंग्वेज बोले पेशगोइयों का मिसदाक है। नहीं नहीं अभी आजाद भाई उन्होंने सच नहीं ना मानी, ये तो बातें उनकी तरफ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ मंसूब है ਝੂਠ ना। ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਖਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਾਓ ਕਸਮ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖਿਓ ਖਾਓ ਕਸਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਸਮ। ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਨਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ- ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਇਹ ਵਾਸਤੇ। ਅਹਿਮਦੀ ਜੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਅਲੀ ਸੁਣ ਅਹਿਮਦ ਲਓ। ਭਾਈ ਠਹਿਰੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ उन ਜੀ दोनों की बात ਹਜ਼ੂਰ हो ਆਏ रही है ਸਨ, ना। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਬੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ चलो ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ इफ्तार ਦਿੱਤਾ। भाई चलो बात हजूर होगी, जी अब तो आए उस ने ना। तरफ नहीं जाती। सही है, ਦੇਖੋ ਜੀ सही ਗੱਲ होगी ਇਹ ਹੈ आपकी ਕਿ बात। 100 ਗਜ਼ ਰੱਸਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜੇ? ਗੰਢ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ तमाम ਗੱਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮਨਸੂਬ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ अली ਜਾਓ। अहमद ਅਲੀ भाई, ਅਹਿਮਦ अली ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ अहमद ਬੈਠ ਕਰ ਲਈ ਆ? भाई, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਪ। ਗੱਲਾਂ ਚੀਮਾ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਬਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਆ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਮਨਸੂਬ ਤੂੰ ਨੇ, ਬਾਤ ਖੁਦਾ ਕਰ ਲਈ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਦਾ ਸਲਾਮ ਅਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਤੂੰ ਬਾਤ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਲਈ? ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? इस सवाल से क्या मतलब? ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਬਾਤ ਲਈ? ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਆਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬਈ? अच्छा आप कुछ लड़ाई छोड़ो, चीमा बड़ी साहब काम- थोड़ा टाइम बड़ी दे, काम की चीमा गल साहब आई थोड़ा है। टाइम दे जी, थोड़ा टाइम दे। चीमा साहब को झूठा कहने वाला बड़ी कम अली अहमद भाई, बड़ी अब गल आप आई बोलो। है। बड़ी बड़ी पॉइंट की गल आई है, बड़ी पॉइंट की जी गल चीमा आई साहब आप है। जल्दी से बता लें। हाँ जी, छोटी बात जी। ਬੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ है, ਮੈਨੂੰ नहीं ਜਾਣ अच्छा, ਦਿੰਦੇ एक ਮਸਜਿਦ और ਵਿੱਚ। पॉइंट कौन भी रोकता मुझे भी सी? आया, वो मुझे भी भूल जाना। चीमा साहब ठहरे। अली कौन अहमद भाई, रोकता सी जो अभी मस्जिद जान बात तो? हुई थी जी। अच्छा अली अहमद भाई, अभी आपने बात सुनी कि चीमा साहब ने जो अपनी बातें थी वो इफ्तार भाई की तरफ लुटाई, उन्होंने आज ऐसे डिनाई कर दिया, तो इस पे आप फिर बात अल्लाह की तरफ ले गए। अब हमने तो नहीं था चीमा साहब से बोला कि वो इफ्तार भाई की तरफ बातें लुटाई। अली साहब उस बंदे से कहें, इफ्तार साहब से कसम खाएं अल्लाह की, फिर मामला अल्लाह पे चला जाएगा। नहीं ऐसे चीमा तो नहीं साहब, ना। उसमें वाली ये बात झूठ- नहीं ये होती। झूठा इंसान है। सही है, आपने ये जो झूठा बोला जिसमें इंसान आपको है, ना सच्चा इसको समझना नमाज है पढ़ने वो या आपको ना सच्चा ये नमाज समझ पढ़ता लेना। है 5 वक्त की। जो एक बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता 5 वक्त की, इसके पास से मैं जाकर इसको समझाता रहा, नमाज पढ़ा करो, पूछ लो इसको, खाई कसम इसको मैं नहीं समझाता रहा था। आप वन साहब अली भाई और तुसी की तरह लोग ला कर वो कर सकते करो। मैं इसके पास से 5 नहीं, वक्त नहीं, नमाज पढ़ने जाता रहा मस्जिद में, मैं ये पीछे कभी हूँ, कभी मैं मेरे साथ पीछे हूँ। जाता रहा है, कभी नहीं जाता रहा, घर में बैठा रहता है, इसको दीन का कोई चीमा इल्म साहब, नहीं आप है। भी सम टाइम नमाज घर में ही पढ़ लेते हैं, क्या हो गया इसमें? ये अहमदी है ही नहीं। इसके मतलब अल्लाह ने मुझे दिखाया था कि दज्जाल है। अगले दिन इससे कहना मेरी बात हुई तो ये आगे से लड़ने की कोशिश कर रहा था। वो ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਝੂਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। हाँ जी अली भाई ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੇ ਉਦੋਂ ਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਫੜੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਉਹ ਅਗਲੀ ਛੱਡੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਸੀ? ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਦੇਣੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਏ ਇਸ ਅੱਛਾ ਦੇ ਚਲੋ ਕਿ ਜੀ, ਕੋਈ ਚਾਕੂ ਹੋਏ, ਛੁਰੀ ਹੋਏ, ਬੰਦੂਕ ਮੈਂ ਹੋਵੇ। ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਝੂਠ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਸਨ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਇਹ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਸਮ ਦੇ ਕੇ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। इफ्तार भाई ठहरे। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋ अली अहमद भाई, ये आपकी लड़ाई है। लगते हो मतलब। नहीं अली अहमद भाई, आपकी लड़ाई है। इनकी लड़ाई है जिनको लाए हैं आप, इनकी लड़ाई है। अली भाई, कलमा पढ़ के कहें अली अहमद भाई रजी अल्लाह ताला। नमाज के टाइम इन्हें रोक दिया गया, बोले कलमा पढ़ के कहें आप। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ भेजे जो झूठ बोल रहा है।
अली अहमद मैंने भाई कोई उधर दस साल आज काज़िबीन बोले बात जो होती झूठ है बोल रहे हैं, उस कलमा जगह पढ़ के कहें कि अली इन्होंने अहमद नहीं भाई, आप कहा। सुनेंगे तो नहीं सुननी भी है कि नहीं? सुनाए भाई, क्या हो सुनाए गया अली सुनाए अहमद भाई जी? सुनाए उस भाई, टाइम सुनाए। मस्जिद में जितनी उसमें बंदे जा सकते हैं उन्हें इजाजत होती है, बाद दूसरे जो है वो बाहर पढ़ते हैं, उसमें तो मैं फिर भी अंदर इसमें जाना इसमें क्या चाहूँ कसूर मुझे नहीं हुआ? जाने साहब, दिया जाएगा। ये भी बात नहीं है अली फिर साहब, ये फिर भी ये बात नहीं, आप फिर अपनी तरफ से बयान फिर कर ये रहे कह हैं। रहे हैं ये कि भी ये तो झूठा है, इसको तो मस्जिद जाने ही नहीं असल दिया, उन्होंने बात तो बेस किसी के को बनाई है। असल बात आप किसी तो को बात को इल्म ही बदल रहे नहीं हैं। है। ਇਹਨਾਂ असल ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ बात ਚੀਮਾ किसी ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ को ਪੁੱਛੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ इल्म ਨਾ ही नहीं ਪੰਜ है। ਸੱਤ वो देखो जी, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ झूठ ਜਾਲੀ बोले देगा ਉਹਦੇ से ਤੇ टैक्स लानत है, जाएगा। लानत पै चुकी है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, जिन्हों ने कहा कि ये झूठ बोलता है, ये नमाज पढ़न गया ही नहीं क्योंकि इन्हें वड़न ही नहीं देता। ए गल इन्होंने कही है, खान कलमा पढ़ के, खान कसम का कलमा पढ़ अच्छा के, मैंने काम में जेड़ा मैं जाया नबियां मैं ते थले जा झूठ रहा बोलता है, नबियां ते झूठ बोलता किसी है, वो बंदे खुद ने बहुत आप पे बड़ा लानते झूठा होता है, डाली है, कज़्ज़ाब होता है। किसी बंदे ने आप पे लानते आप डाली बात करने देंगे अली भाई? अली भाई मैं बात करता हूँ, आप बीच में बोलना शुरू हो जाते हैं। ये खार साहब झूठे साबित तो हो फिर गए ये ना। आप भाई आप लानते बीच क्यों में डाल आप रहे बोलना हैं? कब बंद करेंगे? ओए अली अहमद जी, अली अहमद भाई। यार आप बीच में बोलना कब बंद करेंगे? एक बंदा बात सही कर है, रहा है, आप बीच में शुरू हो गए। आप बोले पर ये लानते शानते ना डालें, बुराई नहीं, नहीं लानत डालनी। उस पे अल्लाह ने डाली है, मैंने नहीं डाली। पता ही नहीं हमारी झूठे सारी पे बात अल्लाह ने का। लानत डाली है। अब अल्लाह की खबर आपके पास पहुंच गई है। नहीं, अली अल्लाह की साहब, लानत आपको ये तो लानते पता ही मेरे नहीं, ऊपर भी मामले का पहुंचेगी आप कि मैं क्यों झूठ टांग रहे बोलूंगा। अल्लाह की नहीं, लानत वो अगर आप मेरे लानते ऊपर आगे पहुंचेगी बांट कि मैं रही झूठ हैं, बोलूंगा। वो अल्लाह झूठे की पे अल्लाह बात की आपके लानत पास है, पहुंच मैं नहीं गई बांट रहा, है। अल्लाह ने की है, मैं नहीं बांट रहा, अल्लाह ने की है। ਲਾਨਤੁल्लाह ਅਲਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਲਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। देखो जी, ਜਾਂ ਤੇ ये- ਚੀਮੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਨਤ ਨਾ ਪਾਓ। ਆ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਾ ਕਰੋ। लानतुल्लाह अलल मुनाफिकीन अल्लाह ने नहीं कही, ये ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਨਤ ਮੈਂ है। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ अली अहमद साहब बैत करो ते रजी अल्लाह बनो। कंट्रोल करें, एक एक मिनट दें सबको। अली साहब ऐसे खिचड़ी ना पकाए प्लीज। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਨਤ- ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਨਤ ਨਾ ਪਾਓ ਜਾਂ ਬਾਤ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਜਿਹੜੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। कुरान ही अल्लाह ने फास्कीन पे लानत नहीं पाई, मैंने आज तक झूठे ना ने ये लानत बात पाई नहीं है। किसी को बताई थी, मैंने और पर्दे में ਤੁਸੀਂ रखी थी। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਮੇ ਦੀ राजपूत ਵਕਾਲਤ साहब ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ बात ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਬਾਤ झूठे ਕਰੋ ने लानत पाई है। ਨਾ ਦਾ ਬੜੇ ਬਾਤ और ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ राजपूत और साहब ਤੁਸੀਂ बात ਜਿਹੜਾ सुनिए। ਚੀਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੈਨੂੰ- ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਬਾਤ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਰੂ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ- ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ- मतलब ਤੁਸੀਂ ਤੇ राजपूत साहब ਤੁਸੀਂ को ਤੇ नीचे ਆਪਣੇ करें, ਕੋਲੋਂ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ राजपूत साहब को नीचे भाई, उतार दो, चीमा दूर कैसा है। टाइम पे ये चीमा साहब को ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਨਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਨਤ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਫਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਸਮ ਖਾਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। चीमा साहब चलेगी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਹਲਾਲ ਐਲਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਲਾਲਚੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਸਮ ਖਲੋਤਾ। ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈ। चीमा साहब ये बातें समझ आती हैं, पर ये आपके जो वकीले आला है, अब आपकी तरफ से दूसरों पे लानते डालते फिर रही हैं, ये भी तो नाइंसाफी है ना। मैं अली साहब मेरी बात सुने। अली साहब अगर मैं झूठ बोलूं, अली अहमद साहब एक मिनट में सबको असल बात बता दूं, मैं मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी, क्योंकि उस वक्त मैं नबी के मकाम पे था और खलीफा वक्त जो है ना मेरे अंदर मेरे नीचे आते हैं, वो उस वक्त अल्लाह ने मुझे बता दिया था हुआ था कि ये नबी नहीं है। ठीक है, उस वक्त इसलिए मैं नबी खलीफा के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, चूंकि लोगों को शऊर नहीं है, इस वजह से नमाज नहीं पढ़ी। उन्होंने आपे नहीं पढ़ी, उन्होंने आपे अली नहीं साहब पढ़ी बात हो करने गए दीजिए। हाँ तो देखो एक और बात अली है, चीमा साहब है, एक और चीमा साहब एक और बात ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਹੁਣ एक और ਦੱਸੋ बात सुन लो, ਹੈ ਵਕੀਲੇ ਅੱਲਾ और ਭਰ बात ਰਹੇ सुन हो लो, एक और बात सुन लो। उस वक्त चीमा साहब की सुन लेना, सुन लो, मंसूर भाई चीमा साहब की सुन लो सुन ना। लें। जी चीमा साहब, उस वक्त मेरी बच्ची जो थी ड्यूटी थी उसकी, और गाड़ी पे वो चूंकि इधर दूर जगह पे आना जाना था, तो मैं बाहर चीमा साहब उसको गाड़ी पे लेके आना और लेके जाना साथ, मैं बाहर खड़ा था उसको उसकी मदद करने के लिए।
نمبر 1 نمبر 2 مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں پہلے بتایا تھا مسرور صاحب ایک طرف بیٹھے ہیں، میں دوسری طرف بیٹھا، میں ان سے بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا جہاں پہ میں رہتا تھا، وہاں پہ وہ آئے تھے، میں نے اصل ان کو پیغام دینا تھا اللہ کا، میں وہ اس وقت میرا ایک بہت قریبی سیکورٹی کا انچارج تھا، جب وہ میرے اللہ وہ عام طور پہ وہاں پہ جہاں پہ میں کھڑا تھا وہاں پہ کوئی ٹینٹ نہیں تھا جہاں پہ چیکنگ کرنی ہو، وہ چل کے میرے پاس آئے ہیں، 1.5 فٹ کے فاصلے پر تھے، سلام ہوئی ہے، مگر اس میرے قریبی نے کہہ دیا سیف، اور سیف کا کوڈ میں سمجھتا ہوں اس بندے سے بچا کر درمیان میں آ جو سیکورٹی والا پھر اندر آ گیا، تو میں پھر وہاں پہ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو میں نے اس لیے بات نہیں کی، ورنہ وہاں پہ مجھے بات کرنی تھی مسرور صاحب سے، ان کو بتانی تھی باتیں، اللہ نے مجھے یہ مقام دیا، وہ میری دعاؤں سے بھی یہاں پہ آئے تھے، اس کے بعد وہ یہاں جرمنی میں نہیں آئے، میرا کام تھا ان کو بتانا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اس وقت مجھ سے غلطی ہوئی، میں نہیں بتا سکا ان کو۔ ماشاءاللہ لو جی لا جو علی صاحب اپنا کلائنٹ وکیل اعلیٰ صاحب پھر لاہور لے جانا راجی والا صاحب جی میں سنیا سی کہ بوٹا لایا ہوا علی احمد دا ہے، سن لو میری ایک میں سنیا لفظ مٹھے شیطان ایک اور لانتی ایک اور لانت دا بندہ آ گیا ہے کہ جیڑا سنی سنائی دے اتنے گل کرے وہ سب تو بڑا جھوٹا ہوندا ہے، حدیث ہے، اور انہوں نے کہا میرا لایا ہویا پودا ہے، یہ سب تو بڑا لانتی ہوندا ہے جو سنی سنائی دے گل کرے۔ نہیں ایک بڑا لانتی جیڑا بھی نبی دی مخالفت وچ اٹھے گا لعنت پوائے گا اپنے تے۔ اے دیکھو جی ہن میرے نال انہوں نے علی 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 کر کے گل کیتی ہے، ہن انہاں کو صبر کر کے میری گل سن لے۔ نہیں میں تو پوچھا کہ دو بندیاں نے گل لایا ہویا کی پودا ہے ہے۔ کہ تہاڈا لایا ایک منٹ گل کر لئی، منو تسی علی علی کیتا تے ہن علی علی کرو، ہن سنو علی، ہن تسی منو یہ دسو کنفرم کر لو کلے علی نال گل کر رہے نے کہ علی احمد نال گل کرنے نے تے علی بھی ہے کلا علی احمد کیا ہو بھائی، او اللہ دے ولی علی احمد کر کے گل کیتی ہے تے ہن سن لو علی احمد کی گل۔ علی احمد بھائی آپ بھی مجھے علی احمد بول دیتے ہیں، منصور بھائی سے پوچھ لیں، منصور بھائی آپ نے میرے لیے ہی بولا نا۔ او بھائی مجھے بات کرنے دیں گے علی، میں بات کر رہا ہوں، آپ بیچ میں اپنا تو پوچھ لو نا، کیا پتا میرے بارے میں بولا ہو۔ علی بھائی میں نے آپ سے وہ علی ان سے احمد پوچھ لیتے ہیں نا، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ اچھا آپ کا لگایا ہوا پودا یہ پوچھ تو لے، ٹھیک ہے وہ بول سکتے ہیں، میرے بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں مجھے۔ منصور بھائی آپ نے مجھے ہی بولا نا، اور سن تو لے علی احمد بھائی، وہ منصور بھائی آپ نے مجھے ہی بولا نا۔ احمد انہوں نے بات کی ہے، علی احمد بھائی آپ بھی مجھے علی احمد بولتے ہیں سم ٹائم، اس میں کیا ہے؟ قسم کھا کے کہو تو مجھے یقین نہیں رہا، تسی سارے جھوٹے ثابت ہو رہے ہو ایک ایک کر کے، قسم کھا کے کہو تسی انہوں نے کیا ہے؟ ہاں چپ کر منصور بھائی جی، چپ کر جائیں، اب ان سے میں نے بات کی۔ ہاں جی قسم کھا کے کہیں آپ نے انہیں کہا ہے، منصور بھائی سے پوچھ لینے دینا علی احمد بھائی، کیوں ڈر کیوں رہی ہے؟ چپ کر جائیں نا، جی بتا منصور رہے بھائی، چپ کر جائیں۔ ایک منٹ علی احمد صاحب میں کیا منصور بھائی آپ نے مجھے ہی بولا نا۔ ایک منٹ علی صاحب میں اپنی گل پوری کراں گا، تسی کی کیڑے علی نال گل کی کر کیا ہے؟ کیڑے علی نال علی احمد صاحب تہاڈا لگایا ہویا پودا ہے، تسی علی احمد دا نام میرا لیا یا نہیں لیا، وکیل اعلیٰ کیا یا نہیں کیا؟ نہیں میں گل کی کیتی ہے، تانوں کی سمجھ آئی ہے؟ میں ہی پوچھ رہا ہوں، میں اپنی گل دی آپ وضاحت کراں گا نا، تے مینوں یہ دسو تانوں کی سمجھ آئی؟ کرو جی، سانوں نہیں پتہ لگا تسی کی گل کیتی، لو کرو جی وضاحت کرو، چلو شاباش کرو۔ نہیں تسی پہلے اس گل دی وضاحت چھڑ دو نا، تسی کرو نا وضاحت یار، تسی وضاحت کرنی کرو وضاحت۔ نہیں تسی کی سمجھے؟ وہ جیڑا علی نے پوچھا ہوتا جواب دینا نہیں، کیا میں وضاحت کراں گا ہوتا جواب دینا نہیں، تاڑے نال کی گل کرے گا بندہ؟ نہیں کی کرنا ہے، تسی دسو، تسی کنوں کیا علی احمد دسو؟ بھائی وہ بتاتے ہیں نا جی منصور بھائی، اوکے بتانے دو، کر رہا ہوں بتا دے۔ بتائیں گے نا آپ میوٹ تو جی منصور بھائی، کیا بات کی پہلے ان سے پوچھے، ان کو سمجھ آئی ہے کہا بات کی میں نے، کیا بات کی ہے؟ ان کو یہی نہیں سمجھ آئی۔ علی احمد صاحب پٹا میوٹ تے دسو میں کی گل کیتی ہے؟ نہیں تو منصور بھائی جب بات ہی نہیں انہیں سمجھ آئی پھر مسئلہ ہی ختم، بس انی کی گل ہے۔ پتہ لگ گیا آپ کو، بتا دیا انہوں نے کس کو علی احمد کہا؟ میں نے کہا زندگی بھر پوچھ لیں نہیں بتائیں گے۔ نہیں میں نے بات کیا کی وہ میں نے بتائے، اگر آپ کو بات ہی سمجھ نہیں آئی
तो फिर फायदा समझ क्या आ उस गई बात बात? का? यानी ये उर्दू में बात हैं? कर रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आई, और उन्होंने अहमद सवाल भाई पूछा है। इस बात हाँ पे तो वापस बताएं आती है। आपको पता अच्छा लग गया इन्होंने इन्होंने किसको कहा? अली अहमद, आपने सवाल किया था, जवाब मिल गया? बताएं। जी देखिए, नहीं आपने फिर मुझे अली अहमद बोला है। अली अहमद भाई तो सम टाइम मुझे भी अली अहमद बोल देते हैं, आप भी बोल जाते हैं सम टाइम। अभी भी आपने बोला है, कि आपकी उन्होंने बात ये सामने जो है। सारी बात की थी कि ये लगाया हुआ पौधा है, किसको कहा था? आपको या मुझे? नहीं पूछे। उस पे तो आते हैं ना, पर पहला आप तो जवाब मिल गया जो आपने बड़ा जबरदस्त ये उठाया बात था, ये बड़ा पूछनी जोरों है शोर ना, से यही उठाया बात था। उन्होंने पूछी थी अली भाई, यही बात उन्होंने पूछी थी। पूछे उनसे किसको कहा था, ये पूछे। अली आज अहमद पूछ के भाई बता- आपने बड़ा जोरों शोर से उठाया था सवाल, चीमा साहब ने उसकी वजाहत खुद दी है। और ये चीमा देखिए साहब की समथिंग बात मैं छोड़ दें, चीमा मैंने साहब एक और आदमी साबित किया है जो कि सुनी सुनाई बातों पे झूठ बोलता है, उससे पूछें ये बात मैंने कही। अली अहमद ਯਾਰ भाई ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਜੇ ਕਰ ਜਣ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ अली अहमद का लगाया हुआ खुद का इसका पौधा है? अच्छा नहीं अली की थी? अहमद भाई मैं बिजी होने चलिए लगा, यार, उसके बाद आपसे आप ही बात जरूर करते हैं। जारी आपसे बात करते हैं। मंसूर भाई के साथ जारी मैं रखिएगा। मंसूर ये से बात नहीं कर रहा हूँ, issue। आप चुप कर जाए, आप चुप कर जाए, बीच अच्छा में ना मैं बोलिए। बस अली इतना आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जो चीमा मेरे साहब से ने बाद में वजाहत पूछना, दी पहले अली से है, बात करते हैं, बीच में ना अच्छा। बात करें, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आप चुप कर वो जो उन्होंने वजाहत अपनी आप खुद चुप दी कर है जाएं, वो आपको उनसे समझ बात आई है। यार अली अहमद में मेरे आप नाल चुप गल कर करन दो यार, जाएं, मेरे नाल उनसे गल बात करन। अली करने अहमद दीजिए। आप म्यूट अली लगा, अहमद आ तेरा वो ही लाया म्यूट लाओ जी, पौधा मैनू सैनी मंसूर ना साहब गल का। कर लेने दो। नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैनू ਗੱਲ ਕਰ, मंसूर ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਪੌਦਾ ਹੈ मैं नहीं करनी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, मैं मंसूर नाल पहले करनी है। अच्छा फिर ठीक है मेरे नाल जिहदी गल हो रही है वो करेगा पहले। करो जी मंसूर साहब, दसो ये ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ अली अहमद ਦਾ लगाया हुआ खुद काश्त का पौधा है, ये ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ अली अहमद ਨੂੰ ਕਿਹਾ? मन्नू ਕਿਹਾ या अली ਨੂੰ ਕਿਹਾ? दसो। जी मंसूर भाई बोल दे कि आपने आजाद भाई से अभी फिर सुना, बोल दे। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ 'ਚ ਸੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੌਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, समझ लगी? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद लगी? रसूलुल्लाह, मुझे इन्होंने ये कहा है, मैंने ये सुना है कि इन्होंने ये कहा है, ये कह दें ये लफ्ज़ इनके नहीं थे कि इन्होंने कहा है कि ये अली अहमद का लगाया हुआ खुद काश्ता पौधा है। बताएं कसम खा के कि आपने वजाहत दे दी है ना। अली आपसे बात नहीं हो रही, अली आपसे बात नहीं हो रही, बीच में ना बोलें, बीच में ना बोलें। खाएं जी मैं कसम ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ मंसूर ਕੀਤੀ साहब। ਅੱਛਾ आप- मैंने जो ये बात आपने किसको मैंने कही? अभी जो बात बोलें। की है, जो मैंने अभी बात की है, आपको समझ आई है फिर कि नहीं आई? आपने फौरन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ दिया है, चलो वो आप पे है। मैं जो बात की मैं उसे बात का नहीं हूँ ना, बीच मुझे में कोई नहीं कोई बोलेगा, है। सिर्फ इस बात का जवाब दे देंगे। जी मैंने अभी जो भागता नहीं हूँ, जवाब भी नहीं अपनी दूंगा, जवाब नहीं देंगे, जिंदगी भर में गारंटी देता हूँ। नहीं, जवाब दे दे मुझे। मैंने जो बात की थी खाए मैंने कसम- वही दोबारा खाए बात कसम की कि आपने ये बात नहीं की। अली अहमद भाई उनका सवाल ही हाँ, चीमा हाँ, साहब क्या- से है, क्या उन्होंने बात- सवाल पूछा, उन्होंने मेरा जवाब सवाल दिया। ये है, अली ये तो आपसे आपका बात नहीं हो रही, सवाल आप बीच है, में ना बोलें। वो जवाब अली जवाब आपका- देंगे, पर आपसे उनका बात पहला नहीं हो सवाल रही, चीमा अली- साहब से है। अली आपसे बात नहीं हो रही, अली आपसे बात नहीं हो रही, आप ना बोले। ठीक जिनसे हो गया सवाल हो रहा है मंसूर उन्हें बात भाई, करने दो। आपका सवाल चीमा साहब से था, आप तो म्यूट लगा जवाब वो लें। देंगे, उसके बाद आप अली आप अहमद भाई म्यूट को लगा जवाब लें। दिएगा। आप म्यूट लगा लें। उन्होंने मुझे कहा है कि ये अली अहमद का लगाया हुआ खुद काश्ता पौधा है। मैं थोड़ा कसम खा बिजी के लगूं, कहीं बात नहीं की। मैं करता हूँ बाद में बात। ये मैं कसम करता खा हूँ के बात। कह दे मैं मान जाऊंगा, नहीं तो ये लानती हैं। आज के बाद ये लानती हैं, इन पे ठप्पा लगा दिया मैंने। ये मान जाए, कहें नहीं कही, बात खत्म हो गई, मैं लानती बन जाऊंगा। करें, हिम्मत करे जरा। ये कभी नहीं आएंगे भाई, झूठा कभी खड़ा हो ही नहीं सकता सच के सामने। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। बिल्कुल तुसी करो, लेकिन अली नू कहना विच नहीं गल करनी। ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਓਗੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਓ ਕਸਮ। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कहना
ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਦਾਅਵੇ ਜੇ ਕਿ ਸੱਚਾ, ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਸਮਝਦਾ। ਮਿਊਟ ਲਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਊਟ ਮਿਊਟ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਆ ਮਿਊਟ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਲਾਓ। ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਗੱਲ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਸਮ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਸਮ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚਾ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਵਕਾਲਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਸਮ ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਸਮ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਸਮ ਖਾਣ ਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਹੈ ਦਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਕਾਲਤ ਕਿਹਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੋਬੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਬੀ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਡਾ ਚੀਮਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮਨਸੂਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤਾ ਪੌਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਦਿਮਾਗਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤਾ ਪੌਦਾ, ਮੁਕਾਲਮਾ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾੜ ਕੇ ਦਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਮਰਵਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਓਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤਾ ਪੌਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੀ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤਾ ਕਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਕਰ, ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਓਏ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੇ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व दुनिया में कर रही है, अस्सलाम वालेकुम, फजूल गाली यार। देखें राणा साहब ने एक बड़ी ही खूबसूरत बात की है। देखें जो भी नबी दावा जब करता है तो उसके घर वाले उसे पागल ही कहते हैं ना, तो ऐसा मसला नहीं है। तो मैं नहीं ये गल की थी। राजपूत साहब आपने कहा है राणा साहब, मसा जाओ जाकर डॉक्टर को इलाज कराओ। दुनिया भी ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ 3-4 ਜੇ ਲੁੜਕ ਗਏ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ जाओ ਕੇ जाके मेरी दुआ करो, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं मर जाऊं जी। ਹਾਂ ਜੀ, ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ बीवी बच्चे ना यार, बोले। अंबिया का ये काम नहीं होता, मरीज हो, अंबिया का ये काम नहीं होता। मानते राणा साहेब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपका साया आपके बच्चों ਦੇਖੋ को ਜੀ, सलामत रखे। ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮਨਸੂਬ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਜਦ ਬੰਦੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਬਰੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਬੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਧਰ ਜਾਣੀਆਂ ਆ, ਯਾਰ ਰਾਣਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਗਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੌਬੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਬੋਬੀ ਨੂੰ ਸਭ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ? ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਚਵਲ ਨਾ, ਬਦਕਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਨਾ ਨਬੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਤਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ ਟੀਵੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਓਏ ਉਹਦਾ- ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਕਾਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਬਗਾਰਤ ਕਲੀਵਰ ਆਪੇ ਜੋ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਨਾ, ਦੇ ਟੋਟੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਸਾਂ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ।
ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਤਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣੋ ਕੀ ਨਾ। ਇਮਾਨੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੁੰਗ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਹਦੀਸੀਆਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਯਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਚੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ VCR ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, हजरत नूह की औलाद बिगड़ गई, हजरत आदम की औलाद बिगड़ गई, रसूल करीम में सारे करीबी रिश्तेदार मान नहीं लग गए, सबका चाचा भी नहीं था, कोई भी नहीं लग गया। फिर नबी रसूल करीम के नाम वाला झूठे या दूसरे अंबिया झूठे ने, इसलिए यह जी गल्लां नहीं करी दी खानदान दियां। और तुहाडे खानदान नाल तुहानूं नहीं मनण दे, तुसीं झूठे हो। जे मैं इन्हां चीज़ां ते आवां, तुहाडे कोल एक ऐसी तालीम होनी चाहिदी है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਸੂਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਫਸੀਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ TikTok ਚੈਨਲ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੋਗੇ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਬਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਣਾ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਬਗੈਰ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਤਫਸੀਰ ਹੈ ਕੁਰਾਨ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਡਿਆ। अहमद जाट साहब सॉरी अहमद जाट साहब, जो भी नबी अगर कोई जो आपके नजदीक अगर कोई सच्चा भी आएगा ना तो उस कुरान करीम की ही बात करेगा और कुरान करीम को बार बार लोगों को बताएगा कि आप इस तरह कर रहे हैं, ऐसा ना करें। कुरान करीम तो ये कह रहा है, नई चीज तो कोई भी नबी नहीं लेके आएगा, वही कुरान करीम की बात करेगा और उसको बार बार करेगा। तो इसमें आप कह रहे हैं कि बार बार वही बात करते हैं। मैं दसदा देखो हज़रत मसीह मौद ने दावा करन तो पहले इस्लाम की कितनी खिदमत की है, की कुछ लिख छड़िया सी, की कुछ कर छड़िया सी। अल्लाह ने उन्होंने इनाम दे दिता, क्यों? उन्होंने दीन इस्लाम की हिफाजत की, बचाया, ईसाइयों को शिकस्तां दित्तियां, हिंदुओं को आर्यन समाज को शिकस्तां दित्तियां, अल्लाह ने उन्होंने इनाम नवाजता। और तुसी भी तो कोई कारनामा दिखाओगे तो अल्लाह तुहानूं इनाम देगा कि तुसीं गड्डी दा इंजन खोलिया तुहानूं इनाम लभी जांदे ने। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਲੇਕਿਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ। ਹੈਲੋ ਐ ਭੇਜੇ ਕਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਡੋਂਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸੂਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਜ਼ਰਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। भाई मैं आपको एक आयत का जिक्र कर देता हूँ कि कुरान करीम का जिक्र है कि नबी से ऊंची आवाज नहीं करनी। मैं नहीं कर रहा, आली अहमद ऊंची होਣ ਡਈ ਮੇਰੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਦੀਨ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦੀਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਫੜ ਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ।
तौबा तौबा तौबा। और यार अहमद अच्छा शाह प्यारे साहब हुजूर थल्ले एक सवाल आया है, पीने वाले प्यारे बंदे हुजूर हो, वास्ते तुम एक पता सवाल तुम आया, शराब ਮੈਨੂੰ पीते हो, ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, हलाल ਤੁਹਾਡੀ हराम दी ਮਿਹਰਬਾਨੀ। चीमा साहब मैं अल्लाह दे ਤੁਹਾਨੂੰ बंदियां ते गल्लां करदे हो। प्यारे राणा साहब ਲੋ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 2026 ਚ। प्यारे हुजूर नीचे एक दोस्त का मैसेज है कि ये बता दें कि चीमा ਯਾਰ साहब ਮੈਂ ਨਹੀਂ आपने अब तक ਮੈਂ कितनी ਰਾਣਾ ਜੀ बातें ਐਸ करवा ਐਸ ली हैं? जो नीचे सवाल लिखे हाँ जी बैठ ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕੋਈ नहीं बैठ दादा करनी। ने बात नहीं ना होती, बात हो रही है उसके बाद आप पॉइंट रखिए ना, सुन तो लेना पहले। इतने बंदे बोल रहे हैं कि गल की समझ नहीं आ रही। हाँ जी नीचे प्यारे हुजूर नीचे जो मैसेज आया ना उसको हाँ जी, पढ़ मैंने लें। बैठ ली है। यार प्यारे हुजूर ने सवाल कर लें दो। प्यारे हुजूर नीचे किसी ने पूछा है कि आपने अब तक कितनी बातें करवा दी हैं? हाँ जी, बाज़ लोग आए थे बैत करने के लिए, उनसे जब उनसे बातें चंद पूछी तो उसके मेरे म्यार पे पूरे नहीं उतरे। उनसे कहा है अभी अपना म्यार बढ़ाओ, ऐसे झूठे मकार ये सब कुछ गलत करके ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। मुझे तकवे में जो बढ़ने वाले लोग हैं वो चाहिए, ताकि अल्लाह ऐसी जमात तैयार हो जो अल्लाह से प्यार करने वाली जमात हो, मुनाफिक ना हो। चीमा साहब तकवे जैसे बदन की होता जो नबी के पैर त्यार के नबी की सोबत की आन के तकवे से बच जाएंगे। पहले दौड़ाता उन्होंने राणा जी उनके पास तलीम वजूद है। आप अमल करना है खुद, जो अमल करेगा उसको जज़ा मिलेगी, जो अमल नहीं करता उसका अपना कसूर है। यार इतनी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? वालेकुम सलाम। अब कहे तो माइक का आवाज है जो आवाज तो होगी। सब कुछ लड़ाई तो नहीं हुई। नहीं नबी की ब्राड पे ऐसा नहीं हो सकता जहाँ नबी बैठे हों। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। आवाज नहीं आ रही ਤੁਹਾਡੀ। तेरी आवाज नहीं आ रही। अभी बेहतर हुई है। जी अब बेहतर है। मैं कह रहा हूँ कि रियाज में आखिरी बात सुनिए। तेरी गल रह गई है भाई, तेरी गल रह गई। नहीं आ रही आवाज। यार तो डबल आवाज पुछदे हो ना उदो आउंदी है फिर नहीं आउंदी। मेरी प्यारे हुजूर सवाल नया आ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਕਿਆ ਖੁੱਲਾ ਤਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਭਾਜੀ ਕੋਈ 30-40 ਬਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆਂਗਾ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਖਾਮੋਸ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮਨਸੂਬ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। अली अहमद साहब राणा साहब ने अभी एक बात की थी कि नबी जो है वो कुछ नई चीज़ लेके आता है, तो मैं कुछ गुजारिशात प्यारे हुजूर की तरफ से रखना चाहता हूँ राणा साहब के आगे। प्यारे हुजूर की कोई 3-4 चीज़ें हैं जो प्यारे हुजूर नई लेके आए हैं। नंबर 1, चारों इनामात प्यारे हुजूर को मिल चुके हैं। नंबर 2, औरत भी नबिया बन सकती ਪੰਜ है। ਪੰਜ 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਪੰਜ ਨਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨਬੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਲੀਮ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਠਹਿਰ ਜਾਏ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਡੈਬਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ, ਨੰਗ ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 4 ਇਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਹੈ 4 ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਡੈਬਰਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਡੈਬਰਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ? ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਨਤ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਬਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾਵਾ ਲਿਆਓ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਡੈਬਰਾ, ਕੌਣ ਹੈ? ਰਸੂਲੇ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਟੇ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
रसूल करीम यार ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਪਿਆਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਬੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਚਲਾ ਚੀਮਾ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨਬੀ ਬਣੇ ਐਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਬੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਸਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਬਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਹਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਜੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਬਣੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਣੋ ਲਾਨਤ ਬਹੁਤ ਘਰ ਜਾਓ ਬਸ ਖਤਮ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਮੁਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਨਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਦਵੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਲਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਦਾਇਆ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਲਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਦਾਇਆ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ मैं कह रहा दे ही सकोगे ही नहीं मैं दोनों दोस्तों से दरखास्त करूंगा कि नबी के होते हुए झगड़ना सख्त मना है नहीं मैं झगड़ नहीं रहा मैं इन्होंने पूछ रहे हैं जिन्होंने इन्होंने नबी ऊंची आवाज में बात मत करो जी मैं कह रहा ये बार बार मैं दस ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ लैला तो कदर ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜਾ बस मैं नबी दी बैत तो बाहर निकल गया क्योंकि इन्होंने शराब हराम कर दी मैं 25-30 बैतां होनी है टिकटॉक ते इकट्ठियां कर देनियां हुन फारग ने ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨਬੀ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਸ ਸ਼ਰਾਬ ਹਲਾਲ ਕਰਦੇ ਬਸ ਹਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹਲਾਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹਲਾਲ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਢੂੰਡੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਵਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ मैं थोड़ी देर आपकी स्पेस लेने लगा हूँ किसी मेहमान को लेना थोड़ी देर में आपकी स्पॉट लेने लगा हूँ किसकी स्पॉट लेने लगे मेरी चल क्या ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਲੱਭਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਲੱਭ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਇਨਾਮ ਠੀਕ ਔਰਤ ਨਬੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ ਨਬੀਆ ਸੀ ਆਹੋ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਭ ਦਾਂਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਭ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਵਾ ਦੈਬਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਬੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ राणा साहब ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸਲੇ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏ ਯਾਰ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ चल जाता ओ भाई ठीक है भाई उन्होंने बोला है ना वो रेफरेंस दे देंगे तो फिर अभी से क्या फैसला आपने ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੁਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲਈ ਅਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲ ਲੈਫਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ भाई जब उतारना हुआ तो मुझे उतार देना आप कह रहे थे ना वो चले गए हैं उन्होंने बड़ी देर से रिक्वेस्ट डाली हुई थी ये मसला ओली अब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ नहीं दादाजी वो इस बंदे ने बड़ी ही देर की रिक्वेस्ट डाली हुई ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ नबी रसूल ਸਾਡੇ ਨੇ किसी से बार बार भूल ना जाया करो अली भाई नहीं मैं दादाजी आपने तो बात ही नहीं थी करनी सही है आपने तो मानना ही नहीं है उसकी बैन हो जाती ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਭੇਜੋ वैसे बड़ी बात है चीमा साहब जा भी नहीं रहे
ਯਾਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਯਾਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ 4 ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਬੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂ ਡੈਬਰਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੱਜਾ ਬਿਨਤੇ ਹਾਰਸ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਸਰ ਕੀ 4 ਔਰਤਾਂ ਨਬੀਆਂ, ਵਾਹ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮਸਾ ਦੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ, 4 ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨਬੀਆਂ ਸਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲੈ 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 ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਸਨ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਣਤ ਪਾਈ ਮੈਂ ਲਾਣਤ ਆਇਆ ਕਰ ਦਵਾਂ ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਗੱਲ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾ ਕਰ। ਤਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਬੀਆ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸੀ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। हाँ जी आजाद भाई तो ये मसला नहीं है, पर लानते नहीं डालनी है आपने ना, जाने मैं दो। नहीं डालता, मैं नहीं डालता, फजूल बात होती है ये यार, लान तान करना नहीं। यार मेरी को तस्वीर बड़ी कर सकता है, मैं अभी मैंने ये आपको कहा दिखाना है चाहता हूँ। कि नबी नहीं हो, कोई औरत का दावा नहीं, उन्होंने कहा है कि है, तो मैं उन्होंने ला के दे दिया, बात सच्ची हो गई उनकी। मैं अगर लगा दूं तुझे इधर तो आपको क्या- दोस्तों को, नहीं, ये मैं मेरी बात है। मैं क्या तो होने डैबर क्या ने लान दिया झूठा है, चुप कर जाएगा, इधर आ जाएगा, इन्होंने पूछ लो बस। अगर गल झूठी होएगी तो फिर लानत पेगी ना। मेरा तो दावा नहीं, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਬਰਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਉਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। यार ऐ करो भाजी, ऐ गोटियां पढ़ो, ने ऐ तो पढ़ो। क्या करो, ये पढ़ ले ऊपर ना, ऊपर पढ़ते हैं। हाँ ये स्क्रीन और थोड़ी बड़ी करे ना, फुल आ जाएगा फिर। वो उससे ज्यादा बड़ी हो नहीं सकती, फिर दादाजी तो यह भाई तो उतारना पड़ता, नाराज हो जाएंगे। नहीं मुझे उतार दो, मैं तो नहीं होता। मैनू ला दो। कोई नहीं मैं चला जाना, मेरी सुनना। हाँ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ भाई। नहीं मैं चला नहीं जाना, लेकिन मैंने उतार सकते हो जदों वेले चाहो। नहीं तो चलो अली फोन कर दो। भाई ये जी वो मोहम्मद अहमद भाई मौजूद है? मोहम्मद अहमद साहब वो प्यारे सूर कितने गए थे? अच्छा थल्ले ने। वो ही टुर गए जे रे। यार अली अपना क्या नाम है, अली भाई वो जट भाई मेरी तरफ मेरी तस्वीर पे क्लिक करो जरा। वो सिर्फ अच्छा अच्छा चलें, खैर ये है हवाला, देख लें अगर कोई थोड़ा बहुत आपको नजर आ रहा है किसी को तो। अपने पढ़ ले, और राणा भाई जो भी हो ना, लानते नहीं डालनी। और मैंने कब डाली है यार, वो मुझ पे डाल दे। बोतल मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ਓਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। अच्छा चलो ठीक है, सच्ची होगी गल। चलो पढ़ के सुनाओ अहमद जट साहब हवाला। ਯਾਰ ਇਹ 4 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬੇ वाला बनी इसराइल की काजी अजूब 4 और 5 में बुक ऑफ जज इदा जिक्र सेकंड के ज़माने में नबिया, इनका जिक्र जोश बादशाह हालूद सेकंड बुक ऑफ 22 दी 14 नंबर आए थे 20 बुक ऑफ किंग में मिलता है। नए अहदनामा में नबिया के यार मोहम्मद अहमद साहब जरा वड्डा करो, इधर औरतां नबियां पहली दफा मुझे पता लगा है। वो ना क्या कहते हैं, नहीं तो हमने बाइबल से क्योंकि मैंने पढ़ के सुनाया है, पता नहीं अब इसको जरा बड़ा कर दें यार। मैं करता हूँ, आपको वो लेआउट चेंज करना पड़ना था, और अभी ये हो जाएगा जनाब। एक्सपैंड है, एक्सपैंड भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा पता नहीं, एक्सपैंड का बटन नहीं चल रहा। हाँ हो गया। नहीं हो गया। हाँ। ये उस दिन हमने आयात पढ़ी तो थी यहाँ पे, नबी आगे नाम भी बताए थे, वो नहीं मान रहा था बनी इसराइल, तो जब उसको वो बताए कहता हाँ ठीक है सही है, मुझे पता नहीं था। याद है बात ये है कि हमारे सामने कुरान करीम की तालीम है। कुरान करीम ने कहा है कि नबी औरत हो सकती है। मुकालमा मुखातबा का कहता है, नबिया ऐसे मनसब नहीं कहता। बस खत्म बात। अब इंजील को ला के साबित करे। और मैं पता क्या, मैं अभी मेरी आवाज आ रही है, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ।
जो अपने राजपूत भाई है ना, तो राजपूत भाई ये आप दूसरों को नहीं कह सकते कि उनको कौन तैयार कर रहा है सर, इसकी बुनियाद इनकी पड़ी है घर से। ये 2019 में बताते हैं कि इनके साथ ये शुरू 2018-19 में व्हाट्सएप की दुनिया में आते हैं, और व्हाट्सएप की दुनिया में ये आवाज खराब हो जाने मोहम्मद अहमद, नाले तेरे ना माइक की डबल आवाज आ रही है, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਈਕ ਖੋਲਦਾ ਡਬਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ। अभी आ रही है आवाज? हेलो या मोहम्मद अहमद, तेरी टीम ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਪੈਣ ਰਹੀ ਹੈ। 243 ਤੇ ਕੋਈ ਆਊਟਲੈਟ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ। 243 फॉर नो लॉस। हमारे से टिकटॉक पे मैच चल रहे होगी सब। आजाद राजपूत भाई मेरी अभी आवाज आ रही है आपको? ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਥੋੜੇ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਂ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? नहीं अपना हैंड फ्री ला के दोबारा ला। अब देखो अब नहीं आ रही है दादा भाई की तरफ से। हम ठीक हो गई है। हाँ ये दादा मैं कह रहा हूँ कि ये कहना ना कि ये बताइए आप या मेरे पे कोई काम लगा रहे हैं या कुछ लगाते हैं, इन्होंने कुछ नहीं, इनका कोई कसूर नहीं, कसूर से सही निकला है घर से। 2018-19 में आते हैं, व्हाट्सएप आता है, सोशल मीडिया, और तब से सुन क्या रहे हैं नबूवत जारी नबूवत जारी नबूवत जारी नबूवत जारी, ये सारा कुछ सिलसिला चल रहा है, सुन रहे हैं। और फिर ये जो चारों इनाम इनको मिल गए हैं, अब ये वाली बात हजरत मसीह इस्लाम ने भी की हुई है, हजरत मसीह इस्लाम को समझ नहीं आई। उस आयत में नबी से मतलब सिर्फ इतना था कि इस रसूल की, रसूलुल्लाह की और अल्लाह की बात करोगे तो अल्लाह ताला को मुकालमा मुखातबा का शर्फ मिलेगा। वहाँ पे नबी से सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है। अगर ये साहब मनसब दे के बैठ गए और दूसरों को मनसब देने के लिए निकल गए और औरतों को भी देने निकल गए, तो इसमें ना तो अंकल सैनी का कसूर है, ना का कसूर है, ना मेरा है। हम तो सालों से 2019 से इनके साथ हैं, पहले व्हाट्सएप में होते थे, वहाँ पे मतलब सारा ये हम वहाँ पे इम्यून हो चुके हैं। अब जो मर्जी कर ले, ये अटल एक फैसले हो चुके हैं, आप बदल नहीं सकते। ये इनका अपना है। और कहाँ से बुनियाद शुरू हुई है? घर से शुरू हुई है। इसी अभी क्यों कह रहे हम करके भी दर्द आ गया, मानते क्यों नहीं? हालांकि हजरत साहब वाली बात मैं कहना ਦੱਸਦਾ मोहम्मद अहमद, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਚ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਲੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਚ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਨਬੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਫਰਕ ਹੈਗਾ। मैंने तो नहीं ये कहना, मैं बिल्कुल नहीं कह सकते हम आजाद भाई, ये इस चीज का देखो, ये पुरानी हम ये कह नहीं सकते। मेरा तो इतना कहना है कि आप लोग पता नहीं क्यों इतना खप रहे हो, बात करके पता चल जाता है यार कितना आगे चलना है। आप वो जो कुछ भी शोर है, रियाज भाई खुद अपने लिए, रियाज भाई खुद अया हो रहा है, इसमें आप लोगों को कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, पता है, सिर्फ चुप करके सुनते रहो, वो खुद करने की जरूरत नहीं है हर चीज। और राणा साहब इसमें एक चीज और भी है, बंदा पागल भी हो जाए और जर्मनी भी हो, दो चीजें हैं। मार्टिन देख साहब अल्लाह के नसीब कहने से खाली ज़हन शैतान की वर्कशॉप बन जाता है ना। अभी वो इफ्तिखार भाई आए, इफ्तिखार भाई ने आगे हमला किया, वो कोई अच्छा हमला नहीं था। रिटर्न में क्या मिला वो नहीं होना चाहिए था जो रिटर्न में हुआ। ये अभी भी कोई आप लोग अपनी जान हल्कान कर रहे हो, वापस टच से मस नहीं हो रही कोई चीज, तो नुकसान आपको हो रहा है, इसलिए उनको चुप करके सुन लो, जो अल्लाह से आ रहा है वो बताओ यार, क्या जा रहा है, किसी का कुछ जा रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है उनकी किसी बात से, वो हर बात अलग सबूत है। मोहम्मद 10-15 मिनट सुन जाते यार, हम 2-2 घंटे देना तो नहीं सुनी जानी। हाँ ये मैंने रिक्वेस्ट की है, ये मैंने तो रिक्वेस्ट की थी कि यार मुख्तसर कर लो बात, ये मुश्किल है इनके लिए इतना ज्यादा सुनना, मुख्तसर कर लो, पर वो उनके अब अपना है। मैंने मजाक से कहा, मैं मोहम्मद अहमद भाई ने ना कल 5-6 हज़ार रुपये चंदा इकट्ठा किया है, तो प्यारा हजूर पाक कह रहे हैं
है मोहम्मद अहमद इकट्ठा किया है जी जी मोहम्मद अहमद साथ नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं कभी था शुक्र लगन देना ही ना कहता नहीं, वो बड़े सीरियस हो गए हैं। नहीं कहा सीरियस से बता, उन्होंने भी मजाक से कहा था अच्छा हम चलने के टिकट ना नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। उनको पता है मेरा हम ज्यादा अच्छी दोस्ती है, मैं कितने इकट्ठे करने नहीं चलते। मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या हाल है अब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। वो नबी साहब किधर गए हैं? रियाज भाई बिजी हो गए होंगे, चले गए हैं। आप हाँ। अल्लाह ताला के अहकामात सुनना चाह रहे थे नए? नहीं नहीं, मैं तो एक ये भाई साहब इधर बैठे हुए हैं, इनको लानते डालने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। मैंने इन पे तो लानते डाल लेना जरा पहले। आजाद ये वाली राजपूत बात कब हुई है? मैंने लानत का मतलब की है पहले अभी तो दसो ना। आपने नहीं सुनी? इन्होंने एक दफा नहीं को काफी दफा कहा कि मैं ये टांगे जोड़ के बात कर देते, इन पे तो फिर मुझे लानत डालनी पड़ती है ना। सुभान अल्लाह। इन्होंने पाओ, ये पाओ। फरमाया। मैंने ये इनसे पूछना है, आजाद राजपूत साहब ने कहा ला मलक इलाहा साहब इल्लल्लाह जो मोहम्मद भी है रसूल। ना, मलक साहब जो भी है, हम लानते नहीं डालते किसी पे भी, हम लानते नहीं नहीं लानते डालते, हम नहीं जानते। बल्कि सर गल कर लेंगे एक बार की करना चाहते हैं, बाकी कोई गल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजाद राजपूत भाई ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पढ़ के कहता हूँ ये बंदा ज़हनी बीमार है। और ये भाई साहब लानते डालने वाले ये कहते हैं कि वो कह रहे हैं मुझे खुदा ने नबी बनाया है। तो इनसे ये पूछना है कि ये कहते हैं कि वो खुदा ने उनको नबी बनाया है, तो बैत नहीं उनकी कर रहे, तो फिर लानत डलती है कि नहीं डलती? पता नहीं ऐसे डलती कि नहीं डलती, मुझे नहीं पता। मैं तो बैठ करने लिए तैयार हूं, शराब हलाल कर दे। रियाज भाई एक बात जरूर करके गया है, और वही बात है मसीह इस्लाम ने भी की हुई है कि वो किसी ने पूछा ना कि हुजूर आपको कोई गालियां नहीं देता, कुछ नहीं कहता, वो शरीफ आदमी है, तकफीर नहीं करता, पर वो मानता नहीं है। तो हुजूर ने कहा कि नहीं वो भी ओनर रही है, जेड़ा मैंने नहीं मनन दिया वो मैंने नहीं सच्चा सही समझा कि नहीं मनन मोहम्मद दिया। अहमद भाई इन्होंने ये भी फरमाया सी कि आज तक कोई औरत नबी बनी है, दसो कोई नबी है? असवद अंसी कौन सी जी? असवद अंसी तो मर्द ही था, वो उसके क्या सजाता है ये वो सज्जा थी दावत, सॉरी सॉरी, सज्जा सज्जा का दावा वो था। कौन थी जी? सज्जा वो कौन थी? औरत वो थी, मगर तो उसको नबी कंसीडर नबी ना कंसीडर करते, वो तो झूठी थी ना। नहीं दावा, की बात है। दावा तो उसने किया था ना दावा तो उसने। नबूवत का किया था ना, दावा तो नबी का हाँ। किया था ना उसने। अब ये बिल्कुल सही है, ये तो पिछले तो कुछ सालों में भी पाकिस्तान में एक औरत ने किया था ना, आपको हाँ याद जी। होगा, पुलिस ने पकड़ लिया था। जी फैसलाबाद ये में। तो वो होता रहता है। हाँ जी वो होता रहता है। अभी यार, टिकटॉक की दुनिया पे ये करबियत है हजरत नास आई थी, वो भी नबी थी। आपको पता है ना, शेख साहब हजरत नास आई थी, वो एक मसीह शेख ਨੂੰ ਪੀਤਲ ਜਾਣ ਦੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ शेख ਨੂੰ वो पीतल जान एक ਦੀ शेख ਚੱਕਰ को ਦੀ जो एक शेख को जो उसने रोला है, तौबा तौबा। वैसे ਉਹਨੇ अहमद ਪਤਾ भाई, क्या करा, मैं तो क्या वीडियो कटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और सात करीब बैठना भी शुरू हो गई थी, साथ लग के। हाँ जी मोहम्मद अहमद भाई एक बात पूछनी है, एक बंदा बीमार हो, मैं उसको, मुझे पता है कि ये बीमार हो, और मैं उसको फूक भरे जाऊं, उसके मतलब की बातें कर करके उसको चढ़ाए जाऊं, और वो गुस्ताखियां खुदा की नज़र में जो ठीक नहीं है वो करता जाए, उसका गुनाह मुझे जाएगा कि उस बंदे को जाएगा? अगर कोई इंसान बीमार है तो आगे क्या? उसको वो खुदा अल्लाह के नज़र में कोई गलत मंसूब करता है, कोई नबी बेचारा कह देता है, कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है, और दूसरा कोई उससे बात करे तो उसको एक सेकंड से नहीं लगाता मुनाफिक कहने में, और उस बंदे को मैं हलाशरी दे रहा, जबरदस्त, ये बिल्कुल ठीक किया आपने। भाई मेरी बीच में कॉल आ गई थी, आई एम रियली सॉरी, आपको रिपीट करना पड़ेगा। मैं जहाँ तक समझा था, आपने कहा था कोई बंदा है वो बीमार है, वो अल्लाह ताला पे ऐसी बातें करता है जो अल्लाह ताला ने नहीं की हुई, तो उससे आगे क्या है, सुनने वाला उसको हलाशरी कैसे देता है? नहीं सुनने वाला नहीं, उसको मैं कहता हूँ जबरदस्त,
ये बिल्कुल ठीक कर रहा है ये। अच्छा 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 अच्छा, उसके बाद एंड पे वो बंदा गलत है या मेरा भी कोई कसूर है? सही है। मैं अब समझ गया हूँ। मैं अगर अभी मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ ना, मिसाल के तौर पे रियाज भाई को ले लेते हैं। आप जो आपने एग्जांपल लिया उसमें रियाज भाई को रख लेते हैं। रियाज भाई ऐसी बातें करते हैं जो वो कहते हैं मुझे अल्लाह बता रहा है मगर अल्लाह ने नहीं की, और मैं सुनता हूँ, मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह जी क्या बात है ना। ये इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं हो सकता कि वो मैं एग्री हो गया हूँ। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि भाई देखो मेरी तो कभी मुलाकात हुई नहीं है अल्लाह से, और ना मुझे कोई आसार नज़र आ रहे हैं कि मैं देख सकूं अल्लाह को ना। हाँ, जो तुम कह रहे हो वो अगर ज़रूरी होगा इतना अच्छा तो मुझे वो खुद भी बता देगा, मगर आपको बताया ये आपका एक्सपीरियंस है, मैं उसको गलत नहीं कह सकता। और गलत ना कहने की भी यही वजह है कि भाई मैं वेरीफाई नहीं कर सकता। सॉरी वो गलत बात हो गई। आप ठीक कह रहे हैं, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उसको कहता हूँ हाँ बिल्कुल तू सही कह रहा है, इसी तरह ही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, शाबाश, तुम जो कह रहे हो बातें वो सारी सही हैं। तो वो वाली बात उसको ठीक लगती है, वो वाली बात उनको ठीक लगती होगी ना कि हाँ यार ऐसे ही है, पहले भी ऐसे ही हुआ था। तो अब वो कोई स्पेसिफाई करेंगे किसी बात को तो फिर पता चलेगा। मतलब तो मिसाल के तौर पे अगर मैं उसकी बंदे की गवाही देता हूँ कि वो ठीक कर रहा है, वो सारा कुछ ठीक है, तो फिर मैं उसका साथी क्यों नहीं बनना चाहता, क्यों नहीं बन रहा? नहीं ऐसे नहीं होता ना। अभी यही वाली मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे रियाज भाई हमारे साथ हैं और उन्होंने हमारे साथ काउंटिंग में 10 बातें की, ठीक है। 10 बातों में 3 बातें ऐसी थीं जो कि बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला एक है और आखिरी शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ये बात मुझे अल्लाह ताला ने बताई है। तो मैं यही कहूँगा यार बहुत आला यार, ज़बरदस्त, ये बात ठीक ही है, इसमें गलती तो कोई नहीं है। हाँ, फिर वो अचानक से ऐसी बातें करते हैं जिनको मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, तो उस पर ऐसे भाई अब कमाल है यार, ज़बरदस्त। मैं बस यही कहूँगा मोहम्मद अहमद भाई, जब मैं उसको ये कहता हूँ, जब मैं सबको ये कहता हूँ कि वो बंदा ये बिल्कुल सही कह रहा है कि मुझे खुदा ने ये कहा, तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि नहीं उसका साथी बनने का कि नहीं? नहीं, अगर आप कोई बनना चाहे तो बन भी सकता है, और नहीं बनना चाहता तो वो उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं कि यार मैं आपकी बात को वेरीफाई नहीं कर सकता, अगर मेरा आपसे मिलना ज़रूरी होगा तो वो मुझे खुद बता देगा। हाँ, पर मैं आपकी मुखालफत नहीं करता, मैं आपकी मुखालफत नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ है नहीं मुखालफत करने को। तो ज़रूरी नहीं है कि वो साथ भी लगे। मुझे नहीं पता आप क्यों कह रहे हैं कि उसको साथ भी करना चाहिए, लगना चाहिए। ये कैसी बात है कि मुझे पता चल रहा है कि ये अल्लाह ने वक़्त का नबी भेज दिया है, मैं उसकी गवाही भी देता हूँ सबको कि यार वो बंदा सही बात कर रहा है, और फिर मैं बात अगो मेरी मर्जी, मैं उन्होंने मन्ना या ना मन्ना, तानू मैं कह रहा कि वो बंदा सही कह रहा जे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम यही कह सकते हैं यार देखो यार ये बंदा नबी होने का दावा कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये वो बंदा नहीं कर रहा, यानी कि मैं नहीं कर रहा, ये रियाज भाई ही है। रियाज भाई की बात कोट करो, देखो यार ये कर रहा है। अब ये कहने के लिए जरूरी है कि मैं साथ, मतलब वो कोई इसका ये मतलब होता है कि मान लाना होता है, या मान लाना जरूरी हो जाता है? मुझे नहीं पता ये क्या होता है। गवाही क्यों दे रहे हैं? अगर ईमान नहीं लाना तो गवाही क्यों दे रहे हैं फिर उसकी? इसको गवाही नहीं कहते, मैं यही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको गवाही नहीं कहते, ये मार्केट में चीज आई है, वो देखो वो पड़ा हुआ है, इसको गवाही थोड़ी कहते हैं, बताते हैं वो देखो वो चीज पड़ी है। मोहम्मद अहमद सानू भी पता मार्केट प्रोडक्ट आई है, तो पता सानू नहीं पता आई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। जब मोहम्मद अहमद भाई एक मार्केट में किसी के बताने से क्या बुराई है? मेरी बात सुने मोहम्मद अहमद भाई, एक मार्केट में प्रोडक्ट आई है, उसके ऊपर उसकी इंग्रेडिएंट सारी लिखी हुई है। हाँ जी, वो जबरदस्त किस्म की कंपनी ने सब कुछ लिख के दिया कि ये हमारी गारंटी है, इसमें ये कुछ चीजें हैं। फिर हम उस कंपनी पे एतबार करें या ना करें? जिसको करना है वो करे, और क्या पता जो बंदा ये कह रहा हो कि यार मार्केट से शायद आई है, वो तो पिछली भी किसी प्रोडक्ट को नाम आंदा हुए, या उनको भी एक अलग नजरिए से देखता हो। यकीन करो तुसी अगर वकील होंदे ना ते कई बेगुनाह फांसी लगे होंदे ते कई गुनाहगार बाहर बैठे होंदे। चाह नहीं गए तुसी वैसे।
ठीक है भाई, ठीक है। रियाज भाई आ मतलब गए हमारे कहता है साथ। जो जिसे लगा है ना ठीक लगा है बस। यस यस, मेरे लिए हर मजहब हर फिरका एक जैसा ही है, सब एक जैसे ही हैं, सब में अच्छी बातें भी हैं बुरी बातें भी हैं, सब इंसान हैं, इंसान इंसानों जैसे होते हैं। सबका अल्लाह को पाने का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। मैं किसी के एक्सपीरियंस को झूठा नहीं कहता, गलत नहीं जिथे कहता। लगा है ना, अगर सच्चे दिल ਨਾਲ लगा होवे तो आपस में कभी भी ना लड़ाई होवे। यस, और सब वहम के पीछे लड़ रहे हैं, वहमी बातों पे लड़ रहे हैं। मेरा वहम अच्छा है जी, मेरा वहम बहुत मोतबर है, तेरा वहम अच्छा ही नहीं है। मेरी बात सुने, वहम की लड़ाई है सारी। मोहम्मद अहमद भाई एक सवाल है। जी कोई नबी की किसी भी हम कहते हैं ना 1,24,000 तकरीबन अंबिया आए गुजरे हैं, हाँ जी, ये है ना? हाँ जी, ऐसे ही सुना है कहानियों में हमने। इसमें कितने नबी आए जिनमें हिल्म नहीं था, वो उनको कोई बात करते थे तो वो आगे से उस बंदे को तंज कर देते थे उसी वक्त। मुझे सबका तो नहीं पता, अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मैंने चंद का जिक्र तुम्हारे साथ किया है, और जो मौजूद डाटा है उसके अंदर अभी आपकी बात से सिर्फ हदीसा की मिसाल सबसे पहले आई है जो बाइबल से हमें मिलती है। वो किसी ने निशान मांगा या को तो वो हजूर ने कह दिया है हराम खोर मेरे को निशान मांग दे, और किसी ने कहा कि मैं अपने मुर्दे दफनाऊं, तो पता नहीं हजूर की क्या कैफियत है। हजूर कहते मुर्दे ने अपने मुर्दे दफनान दो, तुसी चलो मेरे पीछे लगो। तो इस तरह वो फिर दूसरे वाले को शायद ये तलखी लगे, मगर एक्चुअल में नबी की ज़ात में अगर देखें तो वो तलखी नहीं होती, वो हलीम ही होता है। वो मुखालिफ या दूसरे उनको कह रहे होते हैं ये हलीम नहीं है, मगर उसके अपने पैरोकार या वो खुद उसको वो नहीं इसको दूसरी चीज़ समझता होता, वो हलीम ही समझ रहा होता है। इफ्तिखार भाई की फिर रिक्वेस्ट लेना है कि नहीं लेना? ले लो, पर वो कुर्बानी चाहिए हमें फिर एक सीट की। नहीं, वो आप स्पेंड कर देना इसे। ओ यस 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 यस, मेरा मैंने इफ्तिखार भाई को मेरा ख्याल है कि वो नहीं, उन्हें पहले बता देंगे ना कि नहीं, हाँ जी, कि जो भी बात है जैसी भी है नाइंसाफी ना हो चीमा साहब के साथ। नजरियात पे बात करें, जात पे ना है, नजरियात पे बात करें, उनसे क्वेश्चन करें, दीनी मजहबी। जी जी, ये वो मलक साहब है। जी जी, मोहम्मद अहमद साहब, जब जी भाई देखिए मैंने किसी साथ कोई मेरी जाती तो लड़ाई है नहीं, अगर बिल्कुल लड़ाइयाँ बिल्कुल। डालनी होती तो मैं यहाँ पे लड़ के देख लेता था क्या होता है, मगर सही बात है। मेरी राहें और हैं, उनको रहने दें, वो एक साथी इंसान है, तो ऐसे आएगा लड़ाई पड़ेगी, फायदा नहीं है। सही बात है, ठीक है। मैं इफ्तिखार भाई मेरी आपसे दरख्वास्त है, एक तो आपकी आवाज़ पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है, मैं इसको स्टेबल करें, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई क्वेश्चन है या कोई बात है तो वो नज़रियात पे रखना ना, कोई इल्मी कोई कुरान की आयत या इस पे रखो एक दूसरे की, क्योंकि अगर आप उनकी ज़ात पे हमला करोगे तो जैसे उन्होंने पहले आपकी ज़ात पे कर दिए वो अच्छा नहीं है यार, वो उसमें फ़ायदा कोई नहीं है। तो आप कोशिश करें नज़रियात पे बात करें प्लीज़। इफ्तिखार भाई आपके पास है माइक। मगर आप लोग ही तो मोहम्मद अहमद भाई, आप लोग ही तो कहते हैं कि जो नबी है ना कुरान मजीद में लिखा है उसकी नबूवत से पहले उसकी जाती जिंदगी देखो। हाँ, वो अगर किसी ने देखना है कि वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसका है वो जाके देख सकता है, पर अभी इनसे पूछोगे तो वो तो आप फाइंड आउट नहीं ना कि वो तो अपने आप को अच्छा ही कहेंगे। देखो आज के दौर तो में जो लोग बचपन के साथी आके गवाहियां देते हैं वो झूठे हैं सारे। देखो आज के दौर के जो लोग हैं ना, उनके लिए अल्लाह ने जवाब समझाया हुआ है। मोइज़े काफिर मांगा करते थे, आप अल्लाह को जानते हो, अल्लाह को मानते हो, आपके लिए या का नअबुदु व या का नस्तईन है। ये जो पहले ये तलीम मौजूद नहीं थी, उस वक्त नबियों की ज़िंदगी देखी जाती थी कि रियाज भाई स्लो चलो, यहाँ पे रुको, यहाँ पे रुको, ब्रेक लगाओ। मलक भाई मुझे बताएं, ये जो बात अभी भाई ने की है कि खुदा की तरफ से जब भी आते थे, हम रियाज भाई को छोड़ते हैं पीछे चलते हैं सिर्फ, क्या आप ये मानते हैं कुरान मजीद से हमें पता चलता है या पुरानी तरीक से पता चलता है कि ये नबियों के साथ अजीबो गरीब तमाशे निशान मांगने वाले क्या उनके अपने मानने वाले होते थे या उनकी मुखालफत करने वाले कुफार होते थे? मेरी नज़र में तो हमेशा निशान या इस तरह उजते मांगने वाले काफर ही होते थे। तो रियाज भाई की इस बात में कोई गलती नहीं है, मोज़े मांगने वाले होते ही काफिर। वो तो बिल्कुल ठीक है, मोज़े तो वही मांगते थे ना, इनकार करने वाले। हम तो मोज़ा मांग ही नहीं रहे, हम कौन सा इनको कह रहे हैं एक दफा अपनी गाड़ी को जरा वो पेंसिल बिल्डिंग की छत पे चढ़ा के दिखाएं, हम ये कह ही नहीं रहे।
ठीक हम हो तो गया। ये कह रहे हैं आपको पिछली जिंदगी का सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ रियाज जी, भाई हम तो आप कोई सर्टिफिकेट ऐसा किसी जगह से इशू करा सकते हैं जहाँ से पता चल सके कि आपकी 2019 से पीछे की ज़िंदगी, जब से आप पैदा हुए हैं 2019 तक, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साले और बहुत ही कोई शरीफ आदमी था, ऐसा सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं कहीं से? मोहम्मद अहमद साहब, मैं जो भी कहूँगा साहब ज़रा मेरे मुंह की बातें होंगी। असल नहीं, पर सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर होते हैं ना, स्टैंप होती है, कोई वेरीफाई करता है। वो कोई भी नहीं दे अपने सकता। पुराने यार दसो ना भेजे। असल चीज़ ये है कि हमें आज के दौर में नफ्से अमारा, नफ्से लवामा, नफ्से मुतमिना, ये नहीं घुमाना नहीं, गल नू घुमाना नहीं, गल नू नबी दा काम है साफ और सीधी वादिया गल करनी। नहीं मलक साहब, मुकम्मल बारी-बारी करें, पूरी बारी-बारी रखिए, उसके बाद आप उन पे सख्त सवाल करें, वो मसला नहीं, फिर बात उनकी पूरी होगी जी। बारी बारी करें। और रियाज भाई प्लीज आप कोशिश करें 1 मिनट के अंदर करें। यहाँ पे यकीन करें दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है, लंबी डिटेल्स का नहीं रहा टाइम, समराइज करके छोटा सा करें ताकि मलक भाई को मौका दे सके। जी रियाज भाई अपनी बात को आज के दौर में अल्लाह ताला की किताब हमारे पास मौजूद है, अल्लाह के हुक्म हमारे पास मौजूद है। जब हम इंसान को अल्लाह ताला पर्दे खोलता है, उसको समझाता है बातें, तो फिर उसके पर्दे खुलने की वजह से उसको फिर सीधा रास्ता भी नज़र आता है, फिर इनाम अल्लाह ताला देता है। आज हमें ये देखना है कि इनामों में कौन सबसे आगे, तकवे के म्यार में कौन सबसे आगे है। तो अल्लाह ताला ने 4 इनाम बताए हैं। ये वैसे अब करना जो है ना, इसकी ज़िंदगी क्या थी, वो ये तो काफिर भी पूछते थे। अब हमने देखना है कि अल्लाह ताला किसको इनाम दे रहा है, हमें पता है इनाम क्या है। मैंने अगर इनाम ये है तो अपने जिसको जो मुझे झूठा साबित करना चाहता है वो कहे। नबी ने दलील दी थी, काफिर ने किसी ने पूछा था, कुरान मजीद से साबित करे कि हाँ भी ये इनाम नहीं है, तो फिर तो दलील बनती है। अगर वो कुरान मजीद को मानता है तो उसको पता है कि ये 4 इनाम हैं, तो फिर मैंने कहा मुझे अल्लाह ने दिए हैं, मुझे नहीं पता था इन बातों का, तो फिर जिस तरह से पहले नबियों ने आके कहा मुझे अल्लाह ने बताया, मैं भी वही कह रहा हूँ। अगर किसी को यकीन करना है तो वो कर ले, नहीं तो उसके लिए या करना बदो या करना नस्तईन है, अल्लाह से की इबादत करे, अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह उसको बता देगा मेरे मतलब। अली भाई मुझे इजाजत है? जी 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 जी। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मुतल्लक आता है, किसी ने पूछा उनके वालिद साहब से कि वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो तो मसीतड़ है, किसी मसीत च बैठा होगा। ये सुनी हुई है ना बात? जी उसमें है, गवाही आई है ना? गवाही आई है कि नहीं आई? आई है। हमें इस तरह की कोई गवाही दे दे अपने इलाके की, अपने इलाके के किसी मोअज़्ज़ज़ की, किसी दोस्त की, क्योंकि नबी ये हो नहीं सकता। अभी इन्होंने फरमाया था थोड़ी देर पहले, नौजवानी में तो वो होता है ना फकड़पन, ये होता है, नबी की जिंदगी में तो फकड़पन नहीं होता। खुदा ताला उसको बचपन से तैयार करता है। ये चीमा कहाँ लिखी हुई है जो आप कह रहे हैं? अली अहमद भाई चीमा साहब जो आप देते हैं ना, जी चीमा साहब अपनी सोच है, हमारे एक मिनट, लिए चीमा अब साहब। मदद मांगना है अल्लाह से, चूँकि हमारे पास अल्लाह के हुक्म मौजूद हैं। हमने नफ्से हमारा से नफ्से लवामा, नफ्से मुतमिना की तरफ जाना है। ये तालीम आपके पास भी मौजूद है, फ़िक्र आप करें, सारे लोग करें। अल्लाह ताला ने बताया मैं इनाम देता हूँ, मुझे इनाम नहीं मिले, इसको मिले हैं। मैंने अपने मालनामे से बख्शे जाना है, मुझे तो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जन्नत की बिशारत दे दी है। आपको क्या मिला है? सिर्फ बातें। चीमा साहब उनका सवाल ये है, वो दूसरी बहस में जाते हैं कि उनका सवाल सही है या नहीं, पर उनका सवाल इस टाइम उनके सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया। अली भाई आप जो है उनसे ये अली अहमद साहब आपसे पूछा सवाल के नबी साहब से पूछा? मैं अर्ज कर रहा हूँ जो आपने सवाल पूछा है उसकी सनद क्या है? ये कौन नबी की सदाकत, नबी की सदाकत की शर्त कौन सी बयान की? आप सवाल कर लेते हैं, आपसे जवाब किए जाए चीखे मारते हैं हम। उनके मुंह में जुबान नहीं है जो नबी अपने आपसे भी सवाल किया है ना यार, आपने सवाल हमसे किया, उन्होंने सवाल करेंगे फिर आप मुदाखलत करना। आपने उनसे सवाल किया, उन्होंने जवाब दे दिया। लड़ाई की तरफ बात जा रही है, चीमा साहब उसका अच्छा जवाब दे देंगे। क्या हो गया अली भाई, दूसरे को भी बात करने देंगे, आप ही बात करनी। जी मैं तो बोल ही नहीं रहा अली अहमद भाई। भी जवाब अच्छा फिर म्यूट लगा ले, फिर मुझे भी बात कर लेने दें। बात ये है कि जिन्होंने सवाल किया, अगर उनसे सवाल किया जाए तो वो भी जवाब देने के उनको भी जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उनसे सवाल किया है कि नबी की सच्चाई जांचने का मयार ये जो उन्होंने बताया, ये कहाँ लिखा? ये अली अहमद भाई चीमा साहब पूछ लेंगे।
मसला खत्म हो और जाएगा। मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, वो कह रहे मैं चीमा साहब, सारे सवाल चीमा साहब से कर रहे हैं, कोई इनसे भी पूछ ले सवाल या नहीं पूछें? जो ये सवाल कर रहे हैं, ये सवाल कहाँ लिखा हुआ चीमा है? साहब पूछेंगे ना, वो सवाल पूछने चीमा साहब पूछेंगे। किसी नबी की सदाकत का मयार कि वो नबी हो सकता है या नहीं हो सकता, ये कहाँ से इन्होंने बयान किया है? ये तो सूरह बताएं। हाका पढ़ी है कभी? हाँ जी, पढ़ी है। अच्छा मल्ला क्या साहब लिखा थोड़ी हुआ? देर म्यूट रखे जी। चीमा क्या साहब लिखा जी? ये सवाल वैलिड है या नहीं है, आप जो भी बोल देंगे हम मान लेंगे, बस इतना बता दें। चीमा साहब तो जवाब दे चुके हैं उनके सवाल का, आपने सुना नहीं अली भाई? उन्होंने सवाल किया, चीमा साहब ने जवाब दे दिया। मेरा सवाल है इनसे कि ये जो नबी की सदाकत का मयार है वो ये जवाब दे देंगे। अली अहमद भैया म्यूट अरे संगीत आप म्यूट लगा लें अगर आवाज नहीं आ रही आपको तो। आपको आवाज नहीं आ रही? मोहम्मद अहमद आपको आवाज आ रही है? तो म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही, ये बोला है। मैं कह रहा हूँ मोहम्मद अहमद साहब से कि मोहम्मद अहमद साहब मेरी आवाज आ रही है? चीमा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही चीमा साहब मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही चीमा साहब नहीं मंसूर भाई आ रही है, अब आ रही है। वो बिजी हो गई होंगी ना अली अहमद भाई। नो मंसूर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ जी। ये जिन्होंने सवाल चीमा साहब से किया है, चीमा साहब इस वक्त बिजी हैं, उनको आवाज नहीं आ रही। जिन्होंने सवाल किया है, मेरा उनसे सवाल ये है कि ये जो सदाकत का मयार इन्होंने पेश किया है, इसकी सनद क्या है, या अपने पास से घड़ के लाएं? वो चले सदाकत जानने के लिए अली अहमद भाई चले गए। चलेंगे। चलो अली अहमद भाई मेरा सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ। हाँ जी दसो जी सवाल थोड़ा। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਤ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ। नहीं मैं कोई शर्त नहीं कायम कर रहा। नहीं मंसूर भाई मुझे बता दे, मैं पूछ लेता हूँ, कोई मसला नहीं, मुझे मैं ये शर्त मंजूर, ये शर्त मंजूर हाल करो मंसूर साहब। करा सवाल मंसूर भाई उन्होंने बोला है कि बाद में आपने मुझे भी जवाब देना है। इस कंडीशन पे, इस शर्त पे उन्होंने इजाजत दी है। वैसे आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उनसे पूछ लूंगा। चले आप इनसे पूछ के बता दे, इनसे पूछे कि मैं कि मिठा शैतान की हुंदा है। मंसूर भाई मैं माजरत ऐसे सवाल नहीं पूछता। शैतान शैतान होता है ना, वो मीठा होता है ना, खट्टा होता है ना, तुरश होता है। शैतान शैतान ही होता है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसे शैतान मुश्का बड़ा होता है। किधर गए मलक भाई, किधर गए? मैं अभी थे यहाँ पे, वो कहाँ गए? वो पीछे मलिक भाई जो थे वो ये कह रहे थे, मलिक भाई ये कह रहे थे कि ये जो है अपने घर से दलील लेकर आए कि इनके घर वालों ने इनको, या इनकी पहली जो जिंदगी है उनका सारा रिकॉर्ड ला के दें तो फिर मैं इनको सच्चा मानूंगा। तो मैंने कहा ये मयार आपने कहाँ से लिया? मेरा ख्याल है ये वाला अगर ये मयार ला के दिया है, जिक्र अगर किया ये था, मयार ला के हैं, ये जिक्र किया था उन्होंने, ये मयार कहाँ से लिया है? उन्होंने दो मिसालें दी थी कि कुरान मजीद से जब हमें पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बात रखी थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पहले की ज़िंदगी को बतौर सबूत पेश किया था, बतौर दलील पेश किया था कि मेरी पहले की ज़िंदगी देखो, है ना। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए वो चाह रहे थे, हक़ के मुतलाशी थे, और वो चाह रहे थे कि रियाज भाई की भी पिछली ज़िंदगी का हमें पता चल जाए। फिर एक बात मैंने जो सुनी थी, उन्होंने कहा था कि हज़रत मसीह इस्लाम के बारे में उनको ये इस तरह की गवाही मिली कि उनका एक बचपन का वाक़या था कि बचपन में ही वो मशहूर थे कि वो ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारते थे, मसीतड़ उन्हें कहते थे। ये तरीक़े अहमदियत में इस तरह की बातें वो लिखी हुई हैं ना उन्हें हजूर के बारे में, उनके बचपन की। तो अब वो सिर्फ ये जानना चाह रहे, अब वो सिर्फ ये जानना चाह रहे थे, अब वो सिर्फ ये बात पहले तो इन्हीं मायार को देख लेते हैं कि क्या ये मायार जो हैं वो, पहले तो ये देख लेते हैं ना कि क्या ये मायार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रूव किए, क्या लोगों ने उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया कुछ, उनके घर वालों ने उनको माना, उनके अपने सके जो चचा थे क्या उन्होंने माना?
घर में से बताएं, यही फिर समझा मयार जाए। है ना, तो तो क्या फिर ख्याल है? यानी कि आप ये ये जो कहना चाह मयार रहे हैं पूछ कि रहे थे, कुरान मजीद की वो पहले तो ये देखना अली है भाई कि यहाँ कुरान तो करीम ने किसी कंप्लीट नबी, आप क्वेश्चन भी कर लेते हो, फिर दोबारा से इस पता है ये ना वो मैच नहीं हो पाती फ्रीक्वेंसी। अच्छा तो अब क्या चाह रहे हैं आप? मुझे आपकी अब तक की बात से ये लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान मजीद की वो जो आयत है उसके अकॉर्डिंगली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मेयार पे नहीं पूरे उतरते, क्यों? क्योंकि उनके चचा उन पे मान नहीं लाए, ये समझाने लगे मैंने हैं। तो ये बात नहीं की। मैंने तो ये बात कही है कि अच्छा। कुरान करीम ने किसी नबी के सच्चा होने का मयार क्या बयान किया, बस इतनी बात पूछी। ये अली सवाल भाई है मेरा। मेरे लिए तो कोई इंसान कहता है ना मुझे अल्लाह ने ये बताया, मैं कुछ नहीं चेक कर सकता उसको, मैं खत्म उसको बात। मेरे सच्चा लिए भी झूठा यही कुछ नहीं है, कर मेरे लिए भी यही सकता। है, मेरे लिए भी यही। ठीक है, ये मैं तो बड़ी ये अच्छी मेरा बात हो सवाल ये है, जो आपको कह रहे थे कि आपको कुछ पता नहीं चल रहा, तो मैंने सवाल आपके सामने एक रखा है, उसका जवाब दे दें ठीक है, ये बड़ा कि जबरदस्त कुरान अभी पता करीम क्या ने चला। किसी सच्चे के नबी होने का मायार क्या बताया है, बस इतनी बात है, यही सवाल है। ठीक है, अभी क्या हुआ, आप और मैं हो गए सेम पेज पे, एक पॉइंट पे खड़े हैं, मगर ये हमारा था नहीं इशू। मलक भाई के मुसल्लमात में एक चीज़ उनको थी कि भाई नबी ने अपनी पिछली ज़िंदगी को बतौर सबूत के लिए, दलील के लिए पेश किया, और ये कुरान मजीद में जिक्र है। उसको फिर उन्होंने हज़रत मसीह इस्लाम की ज़िंदगी से भी एक एग्जाम्पल, ये उनकी बात थी, उनके बीच रहने देते यार, कर लेते। मेरा एक सवाल है। मोहम्मद अहमद भाई चीमा साहब बोलते हैं कि पहले मैं अहमदियों की तरफ नबी हूँ ना, तो अगर अहमदियों के सवाल हैं तो मुझे यही फील होता है कि उन्हें पूछ लेने चाहिए और चीमा साहब जवाब दें, इस पे कोई मसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। इस पे मोहम्मद अहमद भाई एक और भी है कि कुरान मजीद कहता है सच्चे हो तो दलील लाओ, हाँ जी, तो ये भी बात है, तो ये बिल्कुल ये भी ठीक है। म्यार पूछा है नबी के सच्चा होने का, कि वो नबी है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कुरान मेरा करीम ना एक मिनट अली अहमद साहब, एक मिनट खलो जाओ, मैं चीमा साहब दी साइड लैन लगा थोड़ी जी। मेरे कहने का मकसद है जिन्ने इत्थे बैठे ने नबी रसूल नूं मनण वाले आया, उन्होंने उन्हां नबी रसूलां नूं किहड़े दावे नाल या किहड़ी तहकीक नाल मन्निया? मेरा पूछेंगे तो मैंने तो बस सुना है कि जब मैं पैदा हुआ जिस मजहब वो ऑलरेडी मेरे मान रहे थे, उन्होंने बताया इस वजह से चल पड़ा है, तो मुझे नहीं, हम नहीं चेक कर पाए जी। और ਤੁਹਾਡੇ ਚ जितने ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਆਇਆ ਸਿਵਾਏ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਬੈਤ ਕਰੋ? मोहम्मद भाई मैं जवाब दूंगा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाज़िल हुआ, उसके बाद उनकी जो सीरत है वो हमारे वो तो सामने। नाज़िल चीमा जी पे भी हो रहा है ना। दादाजी फिर सवाल के बाद फिर इसीलिए तो वो कह दादाजी रहे म्यूट हैं। होना पड़ता है ना, दादाजी म्यूट रहे ना थोड़ी देर, सवाल जवाब सुन लेना। फिर हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की बुत का मुतालिया पढ़ा किया, जितना मुझे समझ आया वो मेरे फहम में फिट इन हुआ, इस वजह से मानते हैं ना। अब चीमा साहब के हवाले से जो सवाल है, उन्होंने तो बुत छापी है, उन्होंने तो अपनी सीरत हमें शो की है, वो आप बता दें तो हम फिर सोचते हैं। जी दादा, जैसे मिर्जा साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि जंग अब जो तलवारों वाली है ना वो खत्म है, कलम से लिखी जाएगी। अब ये नए जो नबी हमारे आए हैं तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कहा कि अब कोई इल्म नहीं उतरेगा, कोई कलम नहीं, कोई दुआत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पैगाम पहुंचाया जाएगा जुबान से, खत्म। जी तो ये नई चीज है ना, फिर बंदे स्लोली समझेंगे ना। जी नया स्कूल है ना 2026 से। आज आपको लिखना पढ़ना नहीं पड़ता ना, लिखना पढ़ना नहीं। आज आपको पढ़ता कंप्यूटर पे गूगल पे बोले हाय सीरी मुझे बता दो नबी कब आए थे, वो आपको बता देगी। डिजिटल नबी आया भाईजान, ए जेड़ा नबी है डिजिटल है। ये बस बात में वजन है, आजकल तो लिखने वाला खत्म, टाइपिंग शुरू हो गई और ये सब। जी लिखने वाला काम खत्म। नवे नबी नू चीमा जी लिख लो भाई, ये नवे अगे तो तानू कोई पूछे ते रजिस्टर इवन ऑडियो कर दो, वो टाइपिंग का बुक भी करानी है तो वो खुद ही बुक भी लिख देगा। बुक लिखी है उसको बोल के कराना तो वो भी हो जाएगा। सादे इस नबी नू मनन लई मोहम्मद अहमद दी सारियां बराडां सुननियां पैणियां YouTube ते जाके ना।
ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾਦੇ 2 ਜੋੜੇ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। अच्छा, टीएम जफर साहब भी आए हैं और नजीर अहमद साहब भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम सलाम। मैंने कहा दादाजी ने नई टर्मिनोलॉजी जो है वो रखी है कि डिजिटल नबी। नई सदी भी लग चुकी है, वही नई मैं सदी भी लग चुकी है। नबी साडी मर्जी भाईजान सदी नवी आई है कि नहीं आई? नवी सदी लगी है कि नहीं लगी है? दसो। लगी है पर डिजिटल का लफ्ज बड़ा अजीब है ना, बड़ा पसंद है। डिजिटल नबी भाईजान बड़ा पसंद है, बड़ा पसंद है। जी 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 खत्म का आओ किन्ने इतराज करना है। नजीर अहमद भाई, जिस ब्राड पे हम गेस्ट लड़ रहे थे, मजा आया कि नहीं आया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। ये जो बात डिजिटल कह रहे हैं, जी जी अल्लाह ताला ने ये काफी नहीं हो गई है, आवाज कट हो गई है सरकार। बात सुन लें, मुझे ख्वाब में दिखाया बड़े बड़े बिजली के खंभे हैं। रियाज भाई आवाज सही करें, आवाज सही नहीं है फोन के पास। अल्लाह नु पसंद नहीं आया भी। आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है आपकी आवाज। 2019 में अल्लाह ताला ने ख्वाब में मुझे दिखाया था बड़े बड़े बिजली के खंभे हैं और पैगाम जो है एक तरफ से फेंका जा रहा है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान इलाके मुख्तलिफ हैं, उस तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। तो उस दिन फिर मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुपों में मुझे नहीं पता था व्हाट्सएप ग्रुपों का। बेशक। उस वक्त फिर मैं शाम को जब गया काम पे तो मुझे एक बंदा अंधेरे में नज़र आया, तो उसको मैंने वैसे ही ना अंदाजे से उसका नाम लेके आवाज़ दी तो वही बंदा निकला। फिर उनके बैठ के बस स्टॉप के ऊपर काफ़ी देर बातें होती रहीं, तो फिर उनको मैंने अल्लाह ताला के इनाम बताए, तो फिर उन्होंने कहा आप हमारे ग्रुप में शामिल हों। फिर उन्होंने मुझे ग्रुप में शामिल किया, तो मुझे वो बात समझ आई जो अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाई थी बिजली के खंभे। तो चूँकि ये निज़ाम सारा बिजली का है और डिजिटल निज़ाम सारा बिजली से चलता है, तो उसके बाद ये निज़ाम जो है ना, पहले तो इब्तदाई तौर पे मुझे नहीं बातों का इल्म था। जब अल्लाह ने मुझे पहले साले कहा था, फिर अहमदी नबी उस्ताद जी मैनू ना रखा करो, मैं तुहानू याद करा दिया तुहाडीआं वहीआं। अल्लाह ताला ने जैसे जैसे बताया मैंने बयान कर दिया। जी जी बहुत आला रियाज भाई, बहुत आला। ये तो बड़े अच्छी इल्हाम था। चीमा साहब ना ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ WhatsApp ग्रुप ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ TikTok ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਆਪਣਾ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਬਣਾਓ। अल्लाह ताला मैंने कहा डिजिटल फोटो तो होगी ना, डिजिटल फोटो तो होगी, वही अपनी ज़ियारत करा दें, हम डिजिटल फोटो देख लें। जी जी कराएंगे। अभी अल्लाह ने पैगाम नहीं दिया। आज के दौर में सबको नबी बनाना चाहता हूँ अल्लाह से, ताकि हर इंसान नबी बने, नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन, ताकि अल्लाह की बात जो शैतान उस इब्लीस के साथ हुई थी कि मेरे बंदे जो हैं तेरा कहना नहीं मानेंगे, तो वो अल्लाह के सारे बंदे बने। अल्लाह का दीदार करो। मेरा दीदार किया, मैं तो आपकी तरह इंसान हूँ। बस सही है। रियाज भाई, कभी जिसकी शरीयत की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या आपको पता है कभी उसकी मुलाकात हुई है अल्लाह से? कभी उसने देखा अल्लाह को? पता है आपको इसके बारे में कुछ? 2 बार अल्लाह ताला ने बुलाया, कभी भी नहीं उनकी मुलाकात हुई उनसे? कभी भी नहीं हुई? किनसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई है। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको रिटर्न सबूत दे सकता हूँ। नहीं चीमा साहब जो शख्स ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में करता है, यार क्या कौन सी बात बताए, समझाएं। वो कहता ना कि मेरी रसूल करीम में 2 बार मुलाकात हो चुकी है। नहीं, मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ। ये कह रहा है ना अल्लाह से मिलो, अल्लाह अच्छा, ठीक है। रियाज भाई, मैं अल्लाह ताला से मुलाकात की बात कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह से समझ के अल्लाह ताला के साथ कभी मुलाकात हुई जो आप इनकी कराने लगे हैं? मेरी 2 बार अल्लाह ताला से भी मुलाकात हुई है। चलो ठीक है, मैं भी इस पे कोई इनकार नहीं करता, मगर खुदारा मेरी ये सुन लो, मैं आपको ना रिटर्न में हदीस भेज दूंगा, आपको सुन लो ना, ये रिवायत भेज दूंगा।
पर पहले मेरी तो सुनने में क्या कहने लगा हूँ। ओए आपकी वो रवायत जो आप पढ़ी हुई है वो आपकी समझ है, जो मैं बयान करने लगा सुन लो। अल्लाह का चेहरा नजर नहीं आता, वहाँ पे उसमें पैगाम होता है। अल-कदूस अल्लाह का नाम है, उस ख्वाब में अल्लाह अल-कदूस नाम का एक वजूद होता है जो पैगाम लेके आता है, वो पैगाम अल्लाह ताला दे देता है। अल्लाह का नाम है अल-कदूस। करो यार, किसी ने चटनी बनवानी दिमाग के आगे आ जाए यार। पहले मैं मैं थक गया इसी हूँ। चीज को समझा था कि वो कोई इंसान है, कोई फरिश्ता है जिसने पैगाम दिया। नबी नु मैं बाद में जान अल्लाह दे ताला की ने भाई डिजिटल नबी अल्लाह ताला ने मुझे जान खुद पै शऊर गई। अता किया है कि वो कदूस अल्लाह का नाम है। तो फिर मैं नबी का इसको रिमोट समझा नहीं हूं होएगा। कि वो अल्लाह ताला की जात थी। हाँ ना मैं ਤੇ ਬੈਤ ਹੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਦੋਂ ਬੈਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। उन्हें बता लेने दें, बड़ी अहम बात है, वो अल्लाह से मिले हैं जी और मिलवाना भी चाहते हैं। नहीं वो बात घुमा दी है, बात सारी घुमाई दी उन्होंने। पहले कहते मैं मिला हूँ, फिर बाद में नजर नहीं आता, अल्लाह लफज आते हैं कदूस ही है वो। अब क्या करे इंसान अब। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ। मोहम्मद अहमद साहब जी 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 अगर नबी डिजिटल होएगा, रिमोट कंट्रोल होएगा कि नहीं होएगा? नहीं बगैर वो मुंह से नहीं रखना होगा ना, असि बगैर मुंह से मुझे आप मुझे बाकियों से क्वेश्चन है, प्लीज लिसन। अब आप मुझे बताओ, पहले एक स्टेटमेंट से मेरी अल्लाह ताला से मुलाकात हुई है। जब इंसान बताने की कोशिश करता है कि यार देखो ऐसा मुमकिन नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही नहीं है ऐसा, हम नहीं देख सकते ना, हमारी डायमेंशंस टोटली डिफरेंट है। और ये उसने भी हमें बताया हुआ है कि तुम मुझे नहीं देख सकते। जब बताने की कोशिश करो साथ ही नहीं जी ये लफ्ज़ आया है। अब इस बात पे कोई किसी का लड़ना बनता है? कोई लड़ सकता है ना? आप फाइंड आउट नहीं कर, कोई एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, सिर्फ खामोश हो सकते हो, कुछ नहीं आपके पास। मोहम्मद अहमद साहब, मैं आपको राय हक के प्रोग्राम में उससे पहले भी वहाँ पे बता चुका हूँ ये बात, अब नहीं मैं पहली बार बता रहा। आप भूल गए तो आपका कसूर है। राय हक के प्रोग्राम में क्या हुआ है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ग्रुप में कि ये मुझे अल्लाह ताला से 2 बार मुलाकात हुई है, वो बयान भी कर चुका हूँ। आप ये गलत बयानी कर रहे हो। जब मैंने यार इसे अल्लाह ताला से मुलाकात नहीं कहते हुए खुदा के बंदे बस कर दे यार। यार भाई नहीं तो फिर आप बताओ ना, आपने समझा, मुझे अल्लाह ताला ने खुद मिल के बताया कौन किसकी बात सही होगी। चलो सही है, सही कह रहे हो आप रियाज भाई। जी जी आते हैं नजीर भाई, आप पहले सवाल पूछ ले। ए बी भाई पहले, नजीर अहमद भाई, फिर उसके बाद आप। जी मैं मेरे बात उनको लेने भाई को मैंने ये कहना था कि बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला से मुशर्रफ हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने कौन सा कलाम किस कलाम ना टोलना गुफ्तगू की थी और की गुफ्तगू हुई उसी में करनी थी जो आता था रियाज भाई को, उसी में करनी थी। फ्रेंच में करता तो फायदा रियाज